السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں سنیا شاہ اور آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں دلدارم کی ایپیسوڈ نمبر 15۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں دلدارم بائی اریچھا ایپیسوڈ نمبر 15۔ اس کی زبان کی چالاکیاں دیکھو، ابھی ڈاکو کے بیچ رہتے اسے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ اتنی زبان چلانی آ گئی ہے اسے۔ میں تو کہتی ہوں وہاں جا کر بالکل ہی بے حیا ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر کا تو پانی بھی حرام ہے اس پر اب۔ چاچا غصے سے چیخ رہے تھے۔ گاؤں کے گھر میں جہاں رات دوام کو رکنے کا ڈرامہ رچایا گیا تھا، ماتم کا سا سما تھا۔ دوام کل رات اچانک وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے تھے۔ اکرم اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ میرا تو دل کر رہا تھا 2 تھپڑ لگا کر سیدھا کر دو اس کو گھر کے باہر تک۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ چاچی بھی اپنی لمبی زبان کی جوہر دکھا رہی تھی۔ ان کی آواز میں شدید جلجلاہٹ تھی۔ دیکھا تھا نا اس کا رہن سہن، کیسے چمکدار کپڑے پہن رکھے تھے، کتنا مہنگا جوڑا تھا۔ ہائے اللہ، اور پیروں میں پازیب، سونے کی پازیب تھی وہ، خاص سونے کی۔ میں تو دور سے ہی پہچان گئی تھی۔ صاف دکھ رہا تھا کہ ڈاکو نے خوب لٹایا ہے اس پر۔ اور اس کی جوتی، ارے جوتی چھوڑو، وہ ہلکی ہلکی سی بالیاں اور وہ چھوٹی سی چین بھی کروڑوں روپے کی لگ رہی تھی۔ اس کے تو رنگ ہی بدل گئے ہیں ڈاکو کے بیچ رہتے ہوئے۔ وہ تو ایسے رانی بن گئی ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ وہ ہماری دوام جو ایک وقت کی روٹی کو ترستی ہے، آج اتنے نخرے دکھائے گی۔ اس کی باتوں میں دوام کے خلاف نفرت کے ساتھ ساتھ اس کے بدلتے حالات پر حسد بھی جھلک رہا تھا۔ طیابہ جو بیماری کا ڈرامہ رچائے ہوئے تھے، آرام سے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ غصہ تو انہیں بھی بہت آ رہا تھا۔ جس لڑکی کو ہمیشہ اپنے ہاتھ کی قید میں رکھا تھا، جس پر اب کبھی اپنی مرضی نہ تھوپی تھی، کیسے وہ اتنی آسانی سے آزادی حاصل کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ہار کا غم بھی تھا۔ انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کا بنا بنایا کھیل کیسے پل میں بگڑ گیا۔ جبکہ طیبہ کچھ نہیں بول رہی تھی، انہیں تو اپنی رباب کی پریشانی کھائی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پریشانی سے سفید ہو رہا تھا۔ اکرم رات کو 2 بجے گیا تھا۔ اس کے بعد نہ کوئی کال، نہ کوئی فون اور نہ ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اکرم رخصتی سے ہی انکار نہ کر دے۔ اس کا مطلب پورا نہیں ہو رہا تھا تو وہ ان کی بیٹی کا کیا کرتا۔ مطلب صاف تھا کہ ان کی بیٹی کے فیوچر پر ایک دفعہ پھر سے سوالیہ نشان لگ چکا تھا۔ رباب کی ماں ہونے کے ناطے تائی امی کی آنکھوں میں ایک گہری تشویش اور بے بسی تھی۔ انہیں اپنے سارے منصوبے بکھرتے نظر آ رہے تھے اور اب انہیں دوام سے زیادہ اکرم کی فکر تھی۔ وہ سب یوں ہی باتوں میں مصروف تھے جب اچانک دروازہ دھکیل کر کوئی اندر داخل ہوا۔ کالے لباس میں خود کو پوری طرح سے چھپائے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے، ہر قدم کے ساتھ دہشت کا پیغام تھا۔ اس کی زہر رنگ آنکھیں ان سب پر گڑی تھی۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر سیدھا طیبہ کی چارپائی کی طرف بڑھا، کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا بھاری بوٹ طیبہ کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ چارپائی کا سہارا دیتے ہوئے ایک الگ ہی ایٹیٹیوڈ میں تھا، جبکہ اس کے خوف سے سامنے والے شخص کانپنے لگا تھا۔ یہ تو خیر اس ڈاکو کی دہشت تھی۔ اس کے وجود سے ایک ایسی سرسراہٹ اٹھ رہی تھی جو گھر کے ہر کونے میں خوف پھیلا رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی ہنکی چھائی گئی تھی۔ ارے سردار بیٹا، تم یہاں؟ چاچی کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ کانپنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شدید خوف تھا، جبکہ تائی امی نرمی سے اٹھ کر کانپتی ہوئی ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں۔ ان کی آواز بامشکل ان کی حلق سے باہر ہوئی تھی۔ جس انداز میں وہ بیٹھا ہوا تھا، لگ رہا تھا جیسے تباہی مچانے آیا ہے۔ سردار کی زہر رنگ آنکھیں طیبہ ماں پر گڑی۔ چائے کیوں بڑھیا؟ آج تو دعوت اڑانے آیا ہے تمہارا جمائی۔ کل بڑی خدمتیں کر رہی تھی، آج کل بڑی خدمتیں کیوں نہیں؟ اس کی آواز میں گہری طنزی ہنسی تھی جو گھر میں گونج گئی۔ ہر لفظ زہر میں بجھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اور سناؤ، دل کے وال ٹھیک ہوئے یا نہیں؟ خیر، میں آ گیا ہوں ٹھیک کرنے کے لیے۔ آج تیرے سارے ہی دل کے وال ٹھیک کر لوں گا، تو فکر مت کر، میں ہوں نا، ہر چیز سیٹ کرنے آیا ہوں۔ تیرا پرزا ٹھیک کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ دوام نے اسے بتایا تھا کہ طیبہ نے چولہے سے لکڑی نکال کر دوام کا ہاتھ جلایا تھا۔ اس کی زہر رنگ آنکھوں میں اب شدید غصہ ابھر آیا تھا۔ اس کے چہرے کے نقاب کے پیچھے خوفناک مسکراہٹ ابھر رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، نکائی ہاتھ طرف دہرائی کہ تھوڑے سے فاصلے میں دور ایک چھوٹی سی دلیچ نظر آئی۔ وہ اس کے قریب گیا تو اس کی نظر چولہے پر پڑی، جہاں ابھی بھی لکڑیاں دہک رہی تھی۔ اس نے دلیچ کے اندر آتے ہوئے دہکتی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی اور اس کے دہکتے کنارے کو اپنی انگلی سے چھیا، جیسے درد محسوس ہی نہ ہوتا ہو۔ اس کی ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ سکون سے باہر آیا اور اگلے ہی لمحے طیبہ کی گردن پر پوری قوت سے مارا۔ میری دوام کو لکڑی سے جلاتے ہو تم لوگ؟ وہ چلایا تھا اتنے زور سے کہ طیبہ اپنی بیماری بھول کر دل کا دورہ بھول کر چیختے ہوئے زمین پر گرے۔ ان کی بناوٹی بیماری کا سارا پور کھل چکا تھا۔ وہ درد سے تڑپ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خوفناک کراہٹ تھی، خوف سے جیسے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ سردار کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اب چاچا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے یاد ہے کہ دوام نے بتایا تھا کہ چاچا نے اسے تھپڑ مارے تھے۔ سردار نے ایک قدم آگے بڑھایا اور چاچا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، جس سے وہ دور جا گرا۔ اس کا منہ ایک طرف ڈھلک گیا۔ تم نے میری دوام کے چہرے پر تھپڑ برسائے تھے، میرے سجن سائی کے گالوں پر ہاتھ اٹھایا تھا، ایک معصوم بچے کے گالوں پر تشدد کرتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آیا تھا؟ وہ تمہارا خون تھی۔ وہ چاچا کی طرف بڑھا، ایک زوردار لات اس کے منہ پر ماری اور اس کی زمین پر گرتے ہی اپنی بھاری بوٹ اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ اس کی زہر رنگ آنکھوں میں درندگی کی انتہا تھی۔ اس وقت وہ صرف ایک ڈاکو نہیں بلکہ انتقام کا مجسمہ تھا۔ چاچا درد سے بلک رہا تھا۔ اس کی آواز میں حلق میں ہی گھٹ رہی تھی۔ تائی امی چاچی کے کونے میں اپنے شوہر کا خچر بگڑتے دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی چاروں بیٹیاں کمرے کے کونے میں ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ حالانکہ گھر کے باہر لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ باہر
खड़े घोड़े से अंदाज़ा हो चुका था कि अंदर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि डाकू आया है और इनकी चीख पुकार बता रही थी कि मामला बड़ा खराब है। इसने एक नज़र चाची की तरफ देखा था, वो चीख कर ताई अम्मा से चिपक गई। इसने आगे पीछे हाथ तरफ नगाह दुराई जैसे अपने मतलब की चीज़ तलाश कर रहा हो। जिसमें नाकाम होता वो कमरे के अंदर गया। इसकी नज़र सामने मेज़ पर पड़ी जहाँ सिलाई मशीन के साथ कैंची रखी पड़ी थी। इसने कैंची उठाई, इसकी धार को अपनी उंगली से महसूस किया और एक अजीब सी चमक इसकी आंखों में आई थी। वो कैंची उठाकर बाहर निकला तो वो चारों बेहद खौफजदा नजरों से देख रहे थे। इनकी आंखों में मौत का डर था। वो चाची की तरफ आई, इसने एक झटके से इनके बालों को थामा। तुमने मेरी दुआम के बाल काटे थे, इसके खूबसूरत बालों को बेतरतीब किया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटियों के बाल मेरी दुआम जितने खूबसूरत नहीं थे। और गुस्से से इन्हें घूरता कोई दीवाना ही लग रहा था। इसकी सब्ज़ आंखों में खून उतर आया था। वो फिर अगले ही लम्हे इसने कैंची से चाची की लंबी चोटी को काट कर बेरहमी से चारपाई पर फेंका जैसे कोई बेजान चीज़ को। चाची ने 10 चीख मारी। इसकी आंखों में बेबसी थी। इसने ताई अम्मा की तरफ देखा जो पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। इसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली। अरे आप यहीं पर खड़ी हैं ताई अम्मा, मैंने कहा दावत का इंतजाम कीजिए, दामाद आया है आपका। समझ में नहीं आई मेरी बात। इसके लहजे में अब वही तंजिया हंसी थी। मैं लोगों से हिसाब किताब पूरे कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी दुआम के साथ आपने भी अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैंने इससे पूछा नहीं कि आपने इसके साथ क्या क्या बुरा किया, इसीलिए आपके साथ हिसाब किताब अगली मुलाकात में होगा। फिलहाल मैं इसके साथ अपने हिसाब पूरे कर लूँ। इसने दोबारा ताई अब्बा की तरफ देखा जो दर्द से करा रहे थे। क्या हुआ ताऊ, जलन हो रही है? मेरी दुआम को भी ऐसी ही जलन हुई थी। इसने दहकते हुए लकड़ी उठाकर अब इसके हाथ पर रख दी थी। ताई अब्बा दर्द से चीख उठे थे। इनकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। सरदार के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो अपने इंतकाम की आग बुझा रहा था। सरदार का इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ था। वो सब वहीं ज़मीन पर करा रहे थे। सरदार हर थोड़ी देर में चाचा के मुंह पर एक और जलमाना थप्पड़ लगा रहा था। चाचा का चेहरा सुर्ख हो चुका था, सूझ कर बदनुमा हो गया था। अब सरदार ने इन्हें और चाची को सामने चरपाई पर बैठने का इशारा किया। इसकी जहर रंग आंखों में अभी वही इंतकाम की आग बरक रही थी। ताई अम्मा तो बस जल्दी जल्दी खाना बनाने में मसरूफ हो गई थी। इनकी हाथ तेजी से काम कर रहे थे क्योंकि वो जल्दी से जल्द सरदार से जान छुड़ाना चाहती थी। मामला बिगड़ रहा था, इन्हें अपनी जान की पड़ी थी। अभी वो लोग दुआम को कोस रहे थे कि वो खुद ही आ गया और इन लोगों से हिसाब किताब करने के लिए। और हिसाब किताब करने भी क्या आया था, वो तो अपनी वहशत फैलाने आया था। इन्हें दिखाने आया था कि वो दुआम की पावर इस वक्त क्या है। इसकी मौजूदगी से घर में एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जो चीखों से ज़्यादा खौफनाक थी। ताई अम्मी जितनी देर लगाओगी इतना बुरा पाओगे मुझे, और तुम्हारे शोर की हालत इतनी ही बिगड़ेगी तुम्हारी देर से काम करने से। अगर तुम्हारा शोर मेरे हाथों ज़ाया हो गया ना तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। इसी बात से फिर ताई अब्बा के कराहने और चीखने की आवाज़ आई तो वो तेज़ी से काम करने लगी। इनके हाथ तेज तेज काम कर रहे थे। एक तरफ अकरम और अबाब की परेशानी थी, दूसरी तरफ दुआम का आधी रात को घर से चले जाने के बाद अपने शोर को यहाँ भेज देना, जिसके यहाँ आने के पीछे दुआम का ही हाथ था। ताई अम्मी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। मुसलसल खाना बनाते हुए वो अंदाज़ा अंदर ही अंदर दुआम को कोस रही थी कि इस वजह से इसकी वो इस आफत में फंस गई। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि इसे ऊंची आवाज़ में कोस पाती, क्योंकि अगर बाहर बैठा इसका शोर सुन लेता तो इसके खिलाफ क्या बोल रही थी तो ये यकीनन इनके हिसाब को भी मुकम्मल ही करके जाता जो इसने अगली मुलाकात पर रखा था। ताई अम्मा के चेहरे पर खौफ और गुस्से के मिले जुले असर थे, जबकि हाथ तेजी से काम कर रहे थे। क्या हुआ, अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा तुमसे? सरदार की गरजदार आवाज़ ने ताई को मजीद सहमा दिया। इसकी जहर रंग आंखें ताई अम्मा पर गड़ी थी, जिसके हाथ तेज़ी से काम कर रहे थे। अच्छा, आदत नहीं होगी ना तुम्हें? इतने सालों से तुम्हारी खिदमतें मेरी दुआम जो करती थी, इसकी हाथ का खाना खाते थे और इसी पर जुल्म करते थे तुम लोग। ताई अम्मा के सर पर सवार था जबकि वो बुरी तरह से कांप रही थी। हमें माफ़ कर दो बेटा, हमने दुआम पर कभी कोई जुल्म नहीं किया। अरे हम तो इसके सर पर हाथ रखा था कि 3 बच्ची है। ताई अम्मी ने गिड़ाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, खबरदार जो तुमने इसे आवाज़ निकाली। तुम लोग कितने अच्छे हो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। खबरदार मेरी दुआम का नाम भी अपनी ज़बान से निकाला, ज़ुबान काटने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। मेरी शहज़ादी का नाम लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचना। सरदार ने गुस्से से दहाड़ा। इसकी सब्ज़ आंखों में आग बरक रही थी। और कहाँ है तुम्हारी महारानियाँ? इन्हें शहज़ादियाँ बनाकर मेरी दुआम पर दिन रात जुल्म करते थे ना तुम लोग। बल्लाउ सराइन के हाथ का हुनर भी देखूं मैं। ऐसी कौन सी राजकुमारियां हैं इस महल की जिनकी मुलाजमा के रूप में तुम लोगों ने मेरी दुआम को रखा था? वो गुस्से से पागल हो रहा है। इसके घर के कोने कोने को ऐसे चेक करना शुरू किया जैसे वहाँ सफाई सर्वे करके आया हो। हर जगह गर्दो गुबार, बर्तनों की रेल पर हर तरफ फैला हुआ सामान। इस घर में औरतें नहीं रहती क्या ये फर्श भी मेरी दुआम का था? इसकी आवाज़ में नफरत थी, जबकि ताई अम्मी ने फ़ौरन से मेरा और बाबा सफार नौशी को अंदर आने का इशारा किया। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुए काम करने, लेकिन इनके चेहरे में भी खौफ के साए थे, लेकिन जान जाने का खौफ भी था क्योंकि सरदार के हाथ में बंदूक थी जो कभी भी चल सकती थी। बाहर दरवाजे पर जो लोग जमा थे इन्हें देखकर सरदार ने बस अपनी लोडेड राइफल की एक गोली चलाई थी और इसके बाद किसी की कोई खबर न मिली थी। वो सब डर कर भाग चुके थे। तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे के बाद खाना तैयार हुआ तो इसके सामने मेज़ पर रखकर खाना लगाया गया। चाची कभी अपने सर पर दुबाता रखती तो कभी अपने कटे हुए बालों को संभालने की कोशिश करती। इनकी हालत बड़ी अजीब सी हो रही थी। शक्ल इंतहाई बुरी लग रही थी क्योंकि घुंघराले बाल कटने के बाद पूरी तरह से खड़े हो चुके थे। चाचा का चेहरा इंतहाई सुनहरा चपटे था। यहाँ पर जगह जगह से जल चुके थे, दर्द से करा रहे थे। वो दीवाना खाना जहाँ चंद लम्हे पहले तक एक अजीब सी वहशत तारी थी, अब इसके असरात महसूस हो रहे थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी जैसे किसी ने सांसों को कैद करके रखा हो। तो आम के ताया और चाचा जो सरदार के सामने बैठे इसके हुक्म की तामील कर रहे थे, इनके हाथों में लज़्ज़त थी और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सामने रखी प्लेटों में वो खाना था जिससे ताई अम्मा ने बनाया था। एक ऐसा खाना जो जायके से आधी बेनमक और बेमरच था, मगर इस वक्त इन्हें इस खाने के जायके से कोई गरज नहीं थी। इन्हें तो बस अपनी जान बचानी थी। ये क्या है? सरदार की गरजदार आवाज़ गूंजी और उसके साथ ही सामने रखी प्लेट में एक नजरदारी इसकी आंखों में हकारत थी जो ताई अम्मा की तरफ मुंतकिल हुई। ये खाना बनाया है तुमने? इस उम्र में आ चुकी हो, अभी तक खाना बनाना नहीं आता क्या? सारी ज़िंदगी दूसरों के हाथों का ही खाती रहोगी?
اس کی آواز میں زہر گھلا تھا، اس کے الفاظ نشتر بن کے طیمہ کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا، ہر لفظ ان کے کانوں میں سیسا پگھل رہا تھا۔ پہلے میری ماں کو سکون سے اس گھر میں نہیں رہنے دیا، اسے ملازموں کی طرح کام کروایا، پھر میری دعام کو اپنی ملازمہ بنا لیا۔ خود کیا کہتا ہے تمہیں؟ یہ کھانا بنایا ہے تم نے؟ یہ کیا انسانوں کے کھانے کے قابل ہے؟ اس نے پلیٹ میں موجود بے رنگ بے ذائقہ کھانے کی طرف اشارہ کیا جیسے وہ کوئی زہر ہو۔ یہ کھانا صرف میرے شوہر کھا سکتا ہے، یہ کھانا صرف تمہارا شوہر کھا سکتا ہے۔ اس نے تیا کی طرف دیکھا اور ایک حکم صادر کیا، کھاؤ اسے۔ تیا نے خوفناک نظروں سے اسے دیکھا، وہ بے حد خوفزدہ ہو رہے تھے۔ سامنے رکھا کھانا کیسا تھا وہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ دیر کیے بغیر اسے کھانے لگے تھے، کیونکہ اس وقت انہیں صرف سردار سے جان چھڑانی۔ اس نے چاچا کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا، وہ بھی فوراً پلیٹ میں کھانا ڈال کر کھانے لگے۔ ہاں، لقمہ ان کے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، مگر انہیں چپ چاپ نکلنا پڑ رہا تھا۔ نہ تو کھانے میں نمک مناسب تھا اور نہ ہی مرچ ٹھیک تھی۔ سردار کی آواز میں طنز تھا، لیکن اس وقت تو صرف سردار سے اپنی جان بچانی تھی اور انہیں کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ایسا کھانا صرف اس گھر کے مرد کھا سکتے ہیں۔ اس کی نظر ایک بار پھر طیمہ کی طرف گھومی۔ ایسا بد مزہ کھانا تم لوگ بھی نہیں کھاتے ہوگے، کیونکہ یہاں کا کھانا تو میری دعام بناتی تھی، دعام تو بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ اس نے طیمہ کی طرف دیکھا، مگر اس بڑھیا کے ہاتھ کا کھانا کوئی بھی نہیں کھاتا۔ پھر تو اس بڑھیا کے ہاتھ کا کھانا کوئی بھی نہیں کھاتا، پھر تو اس بڑھیا کے ہاتھ کسی کام کے نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے چھپا لیا، جیسے وہ ان کے ہاتھ کو کاٹ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر خوف اور شرمندگی چھا گئی تھی۔ یہ کھانا کھانے کے قابل نہیں ہے، سردار نے مزید دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اس گھر کی عورتیں کا ہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس نے ان 6 عورتوں کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ شرمندہ ہو گئے، ان کی نظریں جھک گئی اور دل میں اس کے سردار کے خوف اور نفرت دونوں جنم لے رہے تھے۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ انہیں لگا کہ اب بلا ٹل گئی ہے، مگر یہ سکون چند لمحوں کا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر مڑا۔ اس کا چہرہ اس وقت بے نقاب تھا، اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو ان سب کی سانسیں ایک دفعہ بھی سے روک گئی تھی۔ میں آپ لوگوں کو بتانا ہی بھول گیا، اس کی آواز میں ایک نئی دھمکی شامل تھی۔ میں آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ آج رات میرے قبیلے میں ایک بہت بڑا جشن ہے، میں چاہتا ہوں اس جشن میں آپ لوگ بھی شامل ہوں۔ آخر آپ لوگ میرے سسرال ہیں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس دعوت میں شامل کروں۔ اس نے گہری سانس لی، اس کے لہجے میں مزید طنز بڑھ گیا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ کھانا کیسا بنتا ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے وہاں پر آؤ اور اس دفعہ اپنا اصل چہرے سے میری دعام سے ملو۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، یہ اصل شکلیں لے کر آنا اور آنا ضرور۔ اس کی نظریں ایک ایک چہرے پر رکی۔ اگر کوئی ایک بھی نہ آیا تو کل صبح سب کی لاشیں اٹھے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ باہر شیردل کے قدموں کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ان لوگوں نے گہرے سانس لیے، جیسے انہیں نئی زندگی ملی ہو، لیکن جب تک شیردل کے پیروں کی آواز دور جاتی محسوس نہ ہوئی، ان کی سانسیں پوری طرح سے بحال نہ ہوئی تھیں۔ اب انہیں ایک نئے امتحان کا سامنا کرنا تھا، ڈاکو سردار کی دعوت، جہاں انہیں ہر حال میں جانا تھا۔ قبیلے میں جشن کا سما تھا، ہر طرف چہل پہل اور غیر معمولی مصروفیت تھی۔ سورج ابھی پوری طرح سے غروب نہیں ہوا تھا، لیکن فضا میں ایک خاص قسم کا جوش اور سرگرمی محسوس کی جا سکتی تھی۔ دعام تیار ہو کر نیچے آئی تو دیکھا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مگن ہے۔ بڑے بڑے دیگچے نکال کر دھوئے جا رہے ہیں، کہیں آگ جلائی جا رہی تھی اور کہیں میدان کی خاص صفائی ہو رہی تھی۔ یہ سب صاف بتا رہا تھا کہ آج قبیلے میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ بیچ بیچ میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ کام میں شریک تھیں، کوئی لکڑیاں اٹھا رہی تھی تو کوئی سامان ترتیب دے رہی تھی۔ آج میرو فارغ لگ رہا تھا، مطلب صاف تھا کہ کھانا عورتوں نے بنانا ہے۔ آئیے سردانی یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے چرپائی بچھا دیتا ہوں۔ میرو نے دعام کے لیے ایک چرپائی بچھا کر اس پر پنکھا لگایا تو وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ سردار 1 گھنٹے کا کہہ کر گیا تھا وہ واپس آ جائے گا، اس کی اب تک واپسی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ بالا پانی پینے کے بہانے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دعام نے اشاروں میں سے سردار کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ معلوم نہیں، ابھی واپس نہیں آیا، بالا نے جواب دیا۔ سردار کو ایک ضروری کام تھا، شیردل کے ساتھ گیا ہوا ہے، نہ جانے کب تک واپسی ہوگی۔ کہہ تو رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا، مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹے میں آ جائیں گے، اب تک ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ دعام نے اپنا ماتھا سہلایا، اس نے میدان کی طرف دھیان دیا جہاں تیاریاں زوروں پر تھی۔ خیر یہ بتائیے دعوت کا انتظام کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی خوشخبری ہے کیا؟ اس کے لہجے میں ایکسائٹمنٹ تھی، اب تو اسے قبیلے کی ہر چیز میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ بالا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ میری شادی ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ دعام کی حیرت سے پھیل گئی۔ ہیں سچ میں؟ آپ کی شادی ایسے کیسے؟ ابھی تو ہم رشتہ مانگنے ہی نہیں گئے، ایسے شادی نہیں ہو سکتی، شادی پورے اصولوں کے ساتھ ہوگی۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، میں اس قبیلے کی سرداری ہوں، میری مرضی کے خلاف کوئی یہاں کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اچانک بالا زوردار کہکا لگا کر ہنسا۔ ارے بہنا، مذاق کر رہا ہوں، میری ایسی قسمت کہاں کہ اتنی جلدی شادی ہو جائے۔ پہلے تو سردار مجھ سے خوب پاپڑ ولوائے گا، پھر جا کر کہیں شادی کے چانس بنے گے، مجھے تو تمہارا ہی سہارا ہے۔ اس نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سردار کے لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے دعوت کا انتظام کیا جا رہا ہے، تم بھی اپنی تیاری پوری کرو، بہت بڑی دعوت ہے۔ اسی دوران میرو کھانا لے کر آیا اور دعام کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، سردانی اب کا کھانا، آپ کھانا کھا لیجیے، سردار کہہ کر گیا تھا۔ دعام کی نظر کھانے پر پڑی اور اسے کل رات کی فکر ستانے لگی۔ کل رات ڈاکو جی نے واپس آ کر کچھ کھایا تھا، وہاں سے کچھ بھی کھا کر نہیں آئے تھے، اسے اپنے ڈاکو جی کی پریشانی کھائی جا رہی تھی۔ ارے یہاں تو دعوت کی گئی تھی، میرو نے بات کو طویل دیتے ہوئے کہا۔ آپ نہیں تھی تو سردار کو موقع مل گیا تھا عیاشی کرنے کا، بکرا ذبح کروایا گیا، بڑا جشن ہوا یہاں پر رات۔ سردار نے شادی کے
3 महीने बाद जश्न आज़ादी का जश्न मनाया है। मीरू बेसाख्ता बोला तो जहाँ बाला ने इसे घूरा वहाँ दुआम का मुंह हैद से खुल गया। क्या? दुआम के चेहरे पर बेयकीनी छा गई। मेरे डाकू जी ने मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आज़ादी का जश्न मनाया था। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। बाला ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते हुए इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं था, जबकि मीरू को अब कुछ नहीं मिल रहा था बात को कवर करने के लिए। इसकी ज़बान फिसल गई थी और अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे इंकशाफ को कैसे संभाले। दुआम की आंखों में गुस्सा और हैरत के मिले जुले तासरात उभर रहे थे जो मीरू के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। इनकी ऐसी की तैसी ये मेरी गैर मौजूदगी में जश्न मनाते हैं, आने दो इन्हें, आज तो इनकी खैर नहीं। वो हाथ मसलते हुए बोली तो बाला ने मीरू की तरफ देखा था। आज तो वाकई सरदार की खैर नहीं थी। ओहो हो सोना मुखरा, मेरा सजन साईं, मेरा दिलबर साईं, मेरा जानम साईं, पता नहीं कौन कौन सा साईं। और इसके साईं के जाने के बाद यहाँ पर जश्न किए जा रहे थे। कल रात यहाँ पर बकरा ज़बह किया गया, आपकी शाही दावत का इंतज़ाम किया गया और आप मुझसे मोहब्बत दिखा रहे हैं। निकले ना आप भी इन्हीं शोरों की तरह जो बीवी के जाने के बाद जश्न मनाते हैं। सरदार कबीले में वापस आ चुका था, सूरज ढल चुका था, रात होना शुरू हो चुकी थी। कबीले में जश्न की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी थी। सरदार सीधा अपने सजन साईं दुआम के पास आया था। वो परसुकून था। इसके पास आकर अपना हिस्सा बनाने ही लगा था कि दुआम ने इसे झटके से खुद से दूर किया। वो गुस्से से नाक फुलाई, किसी का भी लिहाज किए बगैर बोली तो आसपास के सारे डाकू मुतवज्जो हुए, मगर ऐसे अंदाज में कि सरदार को पता न चले। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन कान इधर ही लगे थे। अल्लाह अल्लाह, इतना गुस्सा सजन साईं जान लोगी क्या? मेरा मासूम साईं इतना गुस्से में क्यों है? किसने कह दिया कि तुमसे कि मैं तुम्हारे जाने के बाद जश्न मनाया है? अरे मैं तो दुख में था, सारी रात सुकून की नींद नहीं आई। सरदार ने मासूमियत से कहा, जैसे इसे कुछ मालूम ही ना हो। इसकी आंखों में सच्ची परेशानी के साथ एक धीमी सी मुस्कुराहट भी थी। वो दुआम के इस गुस्से को खूब इंजॉय कर रहा था। बस ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है क्या होता रहा है मेरे पीछे। यहाँ मेरे जाने के बाद इस कबीले में जश्न मनाए जाते हैं और मैं आधी रात को भाग आपके पास आती हूँ। वो नाराज़गी दिखा रही थी जबकि सरदार मुस्कुराई जा रहा था। इसे दुआम का ये गुस्सा बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरा सोना मुखरा, मैं तो अपनी जीत का जश्न मना रहा था। मुझे यकीन था तुम मेरे पास वापस आओगे, किसी की नहीं सुनोगी, बस इसी जीत का जश्न मना रहा था। सरदार ने अब दुआम को बनाने के लिए एक नया हुर्बा आजमाया। इसकी आंखों में गहरी मोहब्बत झलक रही थी जो सिर्फ दुआम के लिए थी। मैं तो सिर्फ इस बात का जश्न मना रहा था कि मेरी सजन साईं ने दुनिया को छोड़कर सिर्फ मुझ पर भरोसा किया। वो मेरी मोहब्बत की सबसे बड़ी जीत है। वो इसे मनाने की कोशिश में था जबकि दुआम पूरी तरह से इसे नज़रअंदाज करने लगी। इसे सरदार की आंखों में मोहब्बत की चमक साफ नजर आती थी, लेकिन वो अपनी नाराज़गी बरकरार रखना चाहती थी। अच्छा देखो तो सही, कान पकड़ रहा हूँ, आप कबीले का सरदार कान पकड़ कर तुम्हारे सामने खड़ा है, इतनी माफ़ी तो बनती है। यूँ जुल्म मत करो। दुआम ने नज़रों का ज़ाविया दूसरी तरफ किया हुआ था। ये नज़र सरदार को हजम नहीं होती। अगर वो इसे देखने के काबिल नहीं था तो वो इसे दुनिया की कोई भी चीज़ देखने के काबिल नहीं रहना देना चाहता था। सरदार ने पीछे से इसे एक झटके से खींचकर इसका रुख अपनी तरफ फेरा, फिर कान पकड़कर मासूमियत दिखाने लगा। इसके चेहरे पर ऐसी हिलते जाती जैसे इसकी पूरी संतलत दुआम की नाराज़गी पर मंसर हो। मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता सजन साईं, तुम्हारा ये मुँह फैलाना मेरे दिल में आग लगा देता है। जब वो नहीं मानी तो इसके सामने ही उठक बैठक करने लगा। सरदारनी को माफ़ कर दो सरदार को, और जुल्म मत करो। इसका अंदाज़ा ऐसा था कि कबीले के सारे डाकू मुँह खोले से देखने लगे। हालात बदल रहे थे। सरदार बदल रहा था या बदल चुका था। इस लड़की के सामने सरदार नहीं बस एक दीवाना था, एक आशिक था जिसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। पीछे से एक डाकू बोला, सरदारनी सरदार को माफ़ कर दो, बेचारा माफ़ी मांग तो रहा है, अब और क्या करे वो। हाँ सरदार को माफ़ कर दो। तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। हर कोई माफ़ी के लिए बेकरार था। सब सरदार की बेबसी पर मुस्कुराते थे। ज़्यादा कुछ ना बोलो आप लोग, मैं जानती हूँ आप लोग भी अपनी बीवियों के जाने पर जश्न मनाते हैं। सारे डाकू एक जैसे हैं, सिर्फ मेरे बाला भैया अच्छे हैं। देखना जब उनकी शादी होगी ये अपनी बीवी को कितने प्यार से रखेंगे, कभी इसकी जाने पर जश्न नहीं मनाएंगे, है ना बाला भैया। वो बाला की तरफ देखते हुए बोली तो जो पहले ही से तरसा हुआ था इसके बस कि इसकी शादी हो जाए। हाँ बेना बिल्कुल, जब मेरी शादी होगी मैं बिल्कुल बीवी के जाने पर जश्न नहीं मनाऊंगा, बस तुम मेरी शादी करवा दो। बाला ने भी जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाया। इसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। तरसे हुए इंसान, यहाँ मेरी सजन साईं नाराज़ है, तुझे अपनी नया पाल लगानी है, सरदार ने बाला को घूरते हुए कहा। इसका अंदाज़ा ऐसा था जैसे वो बाला को अभी मज़ा चखा देगा। मेरा मासूम साईं माफ़ कर दो यार। इसने एक बार फिर दुआम से इल्तिजा की। इसके लहजे में ऐसी आजिज़ी थी जो किसी सरदार में पहले कभी नहीं देखी थी। नहीं माफ़ नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए माफ़ नहीं करूँगी, वो नाराज़गी से कहती ऊपर की तरफ जाने लगी। जबकि सरदार ने बेबसी से सारे डाकुओं को देखा जो कंधे उचका गए थे, जैसे कह रही हूँ सरदार इसने हमारी भी नहीं माननी। बाला भैया इन्हें बता दीजिएगा मैं तैयार होने ऊपर जा रही हूँ, अगर कोई मेरे पीछे आया ना तो मैं मज़ीद नाराज़ हो जाऊँगी। वो बाला की धुई हुई कैरी को दुपट्टे में छुपाते हुए बोली, मतलब साफ था कि वो उस पर हाथ साफ करने जा रही है। बाला की नज़र किचन में काम करते हुए कैरियों पर गई थी, जिसमें से इसने मेरू से छुपाकर एक कैरी अपने पास अपनी बहना को खुश करने के लिए रख ली थी। दुआम के चेहरे पर अब भी हल्की सी नाराज़गी थी, लेकिन इसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। तुम बेफिक्र होकर जाओ बहना, सरदार को अपनी इज्जत प्यारी है, आपके कबीले के सामने मजीद अपनी इज्जत की वाट नहीं लगवाने वाला, आराम से जाकर खाओ। बाला ने इसके साथ साथ आते हुए एक छोटी सी पूरी अभी इसके हवाले कर दी जिसमें चाट मसाला था। बाला की आवाज़ में नरमी और अपना ये तिहाई में सदके अपने वीर के जियो मेरे भाई संभाल लेना सब कुछ, वो कहते हुए ऊपर भाग गई। जबकि बाला ने मासूम नजर से सरदार की तरफ देखा। वो जानता था कि इस नजर से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। जबकि जिस अंदाज में बाला ने दान दिखाई थे सरदार नफी में सर हिलाकर रह गया। सरदार के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भरी मुस्कुराती जैसे इसकी सारी थकन दूर हो गई हो। दुआम तैयार होकर पथरीली पहाड़ों से नीचे उतर रही थी। चांद की पहली झलक
की रोशनी इसके सुर्ख फराक पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज इसने सुर्ख रंग का एक बेहद खूबसूरत फ्रॉक पहन रखा था, जो इसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। इसके चेहरे पर हया की लाली थी और आंखों में एक चमक जो सरदार को दीवाना बना रही थी। सरदार इसे देखकर अपना दिल थामे बेयकीनी से देखता रह गया। इसकी हर सांस दुआम के साथ अटक रही थी। जैसे ही दुआम करीब आई, सरदार ने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे इसे छूना चाहता, मगर दुआम इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। इसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट। सरदार की बेचैनियां देखकर इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सरदार की हालत को खूब इंजॉय कर रही थी। अल्लाह, ये मेरी ही सजन साई है या आसमान से उतरी हुई कोई हूर। सरदार ने दीवाना वार खुद से कलाम किया। इसकी सब्ज़ आंखों में दुआम के लिए बलबलाना मोहब्बत साफ झलक रही थी। इसने एक बार फिर दुआम के बुलाने की कोशिश की, मगर वो आगे बढ़ चुकी थी। कोई अपना सरदार तो संभाले, लगता है आज ये अपने सोने मुखड़े की अदाओं से ही मर जाएगा। वो बुलंद आवाज़ में आप बढ़कर बोला तो जहाँ बाला ने कहका लगाया, वहीं सारे डाकू मुस्कुराए थे। अरे मेरी सरदारनी, ज़रा एक नज़र देख तो सही इस दीवाने को। ये तेरा सरदार आज तुझ पर सब कुछ लुटाने को तैयार खड़ा है। वो बुलंद आवाज़ में इसे छेड़ रहा था, जिस पर वो नखरे दिखाती ज़रा सी गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गई। मतलब आज इसके नखरे अरूज पर थे। जी नहीं, मुझे नहीं देखना, आपको चाहिए अपनी बीवी। जी नहीं, मुझे नहीं देखना आपको, आप जाइए बीवी के जाने का जश्न मनाइए। वो कहते हुए बाला के पास आ रुकी थी, लेकिन इसकी पहुंच से दूर हरगिज़ नहीं थी। जश्न शुरू हुआ तो खूब हुआ। डोल की थाप पर पूरा कबीला झूम रहा था। कुछ डाकू चारपाइयों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस पर खड़े डोल बजा रहे थे, कुछ नीचे ज़मीन पर घूम रहे थे और किसी ने हवा में पिस्तौल से फायर करके अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन इस पर खास ध्यान रखा गया कि फायरिंग एक इंतहा से ज़्यादा ना हो। बहुत कम आवाज़ वाली फायरिंग बुलेट्स यहाँ पर लाई गई थी, क्योंकि इन्हें पता था कि इनके सरदारनी इस चीज़ से डरती है। पूरा कबीला एक बड़े मेले का सामान पेश कर रहा था। सरदारनी, इधर आ जाओ, जश्न देखो, आज तुम दोनों के इश्क का जश्न है। मीरू ने बुलंद आवाज़ में कहा। इसका इशारा सरदार के पहलू ने थोड़ा ऊपर पत्थर की तरफ खड़ा था। इसने एक नज़र सरदार को देखा, फिर मुंह में बाला से कुछ बड़बड़ाते हुए चेहरा फेर गई, जिस पर बाला एक दफ़ा फिर से कहका लगाकर सरदार को चिताती नज़रों से देखने लगा। दुआम ये सब कुछ देखकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। इसके चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ रही थी, मगर जब इसकी नज़र एक कोने की तरफ पड़ी तो वो अपने खानदान वालों को सहमे हुए देखकर हैरान रह गई। तैयबा, ताई, अम्मी, चाचा, चाची और रबाब के साथ बाकी तीनों बहनें खौफजदा नज़्म में एक दूसरे से चिपके हुए थे। इनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। दिमाग को कुछ समझ नहीं आया, सब क्या है। सजन साई, इधर आ जाओ मेरे पास। इसने बेयकीन से सरदार की तरफ देखा, जिसने अपना हाथ बनाकर इसे अपनी तरफ आने का इशारा किया था। दुआम तेजी से चलती हुई इसके पास और इसके पैरों में आ खड़ी हुई। इसका दिल सरदार के करीब आकर पुरसुकून हो गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या है। इसने सरदार की तरफ सवालिया निगाहों से देखा था। क्या हुआ सजन साई, तो घबरा क्यों रही हो? सरदार ने दुआम के चेहरे पर नरमी से हाथ फेरा और दुआम की निगाहों का मरकज समझ गया था और हल्का सा मुस्कुराया। इसके चेहरे पर एक फातिहाना चमक थी। ये न तुम्हारे खानदान वाले हैं? क्या हुआ, पहचान में नहीं आ रहे? आओ तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। इसका हाथ हमें सरदारी ने इन लोगों के पास ले गया। दुआम का दिल खौफ और हैरत से तरक रहा था। इसने अपने खानदान वालों को हालत देखी तो इसके मुंह से आवाज़ ना निकली। सरदार के करीब जाकर रुका। इनसे मिलो, ये हैं तुम्हारे ताया साहब। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारा हाथ जलाया था उन्होंने? मैंने इनकी गर्दन, इनका चेहरा, हाथ सब कुछ जला दिया। तैयबा दर्द से करा रहे थे। इनका चेहरा और गर्दन जगह जगह से जली हुई थी, जो सरदार की गुस्से की गवाही दे रहे थे। सरदार की तरफ देखा। सरदार ने इनकी तरफ हकार से देखा। ये तुम्हारे चाचा साहब, चेहरा थोड़ा सूजा हुआ है ना? वो क्या है कि थप्पड़ खाने की वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है। चाचा का चेहरा सूजा हुआ था और उस पर दर्द के आसार नुमायां थे। सरदार ने घूरा। इनकी आवाज़ में ऐसी शिद्दत थी जो इनके दिल को इसकी आवाज़ में ऐसी शिद्दत थी जो इनके दिल को दहला रही थी। मेरा मासूम से मुखड़े को अपने हाथ से थप्पड़ मारे थे। मैंने इनके हाथ की हड्डियां भी तोड़ दी हैं। आंदा किसी पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं करेंगे ये। सरदार इनकी आंखों में देखते हुए आगे बढ़ा तो आगे ताई अम्मी खड़ी थी। बहुत ज़्यादा थी, उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। इन्हें फ़िलहाल के लिए माफ़ कर दिया है मैंने, अगली बार इनसे हिसाब लूँगा। तुमने इनके बारे में मुझे तफसील से बताना कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। मैं अपनी सजन साई के ऊपर हर जुल्म का इंतकाम सूद समेत लूँगा। सरदार की आवाज़ में एक गहरा अज़म था। वो दुआम की तरफ मुड़ा। इसके चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डाली। वो क्या है, वक्त कम था, वरना इनके साथ मैंने हिसाब तो अपनी माँ के भी पूरे करने थे। खैर आगे बढ़ो। ये चुड़ैल, चुड़ैल नहीं, तुम्हारी चाची। वो चाची के सामने रुका। चाची के बाल बेतरतीबी से कटे हुए थे। इनकी शक्ल अजीब लग रही थी। इनके चेहरे पर शर्मिंदगी और खौफ का मिला जुला तासर था। इस औरत ने मेरे हसीन मुखड़े के बाल काटे थे, अब खुद बालू से महरूम हो गई है। वैसे ये हेयर स्टाइल तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? गंजा कर दूँ? सरदार के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। इसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। वैसे नाइस है मेरे पास, ये भी कर गुजरूंगा अपने हसीन मुखड़े के लबों पर मुस्कुराहट लाने के लिए। वो नरमी से दुआम के गाल पर झुका और पूरी शिद्दत से इसके गाल को चूम गया। इसकी हरकत नहीं बेसकता था कि दुआम ने हैरत से सामने करता या ताई चाचा को देखो, जो उसकी हरकत नोट करने के बजाय खुद अपनी तकलीफ पर हाय हाय कर रहे थे। और ये तुम्हारी बहनें। सरदार ने दुआम की बहनों की तरफ इशारा किया। वो सब एक कोने में सहमे करती। इनका हिसाब भी बाद में लूँगा, वक्त कम था। वैसे इन लोगों ने तुम्हारी दावत की है, ऐसी दावत की है कि मुझे इन्हें दावत पर बुलाना पड़ा ताकि इन्हें बताया जा सके कि खाना कैसे बनता है। खाना ठीक से खाकर जाइएगा और नोट कीजिएगा कि 50 तक आप लोग पहुंच गई होंगी। अब तक आपको खाना बनाना नहीं आया, लेकिन आज यहाँ सब कुछ सीख कर जाइएगा। मेरी अगली दावत अच्छी होनी चाहिए। ज़बरदस्ती का मेहमान बन कराऊँ या आपकी मर्ज़ी का, मुझे खाना अच्छा चाहिए। इसकी आवाज़ में तंज और धमकी दोनों शामिल थे। सरदार दुआम की तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में प्यार और फिक्रमंदी थी। सजन साई, तुम खड़े खड़े थक गई होगी ना? सरदार ने ऊंची आवाज़ में कहा। सरदार के लिए बैठने का इंतज़ाम करो। सरदार के हुक्म पर अगले ही लम्हे डाकू ने तीर की तेज़ी से दुआम के लिए चारपाई बिछाकर इस पर चादर डाली और पंखा लगा दिया। जबकि इसके खानदान वाले तकरीबन 2-2.5 घंटों से वहाँ पर खड़े थे। इसके कदम छल हो चुके थे, लेकिन ना तो इन्हें कोई
किसी ने बैठने के लिए कहा था और ना ही बैठने के लिए जगह दी थी। तो हम हैरान थी, परेशान थी, कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जज्बात में बहकर सरदार को बता गई थी कि इन लोगों ने इसके साथ क्या क्या किया, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा सलूक करेगा इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था। बस सरदार को देखकर सोच में पड़ गई। आप ये क्यों खा रहे हैं? अपनी पसंद का खाना खा लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, दुआ मुँह बनाकर बोली। जबकि बाला भी आज इसी की दावत उड़ा रहा था। इसे अच्छा नहीं लग रहा था कि सरदार अपनी मर्ज़ी का खाना नहीं खा रहा। दावत बहुत ही शानदार थी, हर तरह का लजीज खाना बनाया गया था। दुआम के लिए अलग से खास चीज़ें बनाई गई थी और सरदार भी वही सब कुछ खा रहा था जो आज दुआम के लिए बनाया गया था। जो मेरा सजन साई खाएगा मैं भी वही खाऊंगा। सरदार नरमी से बोला तो दुआम ने इसके अंदाज़ का मजाक उड़ाया। हाँ, जैसे सजन साई खाएगा ये भी वही खाएंगे। और इसी सजन साई के जाने पर रात को यहाँ दावतें चल रही थी, बकरे ज़बा हुए थे। इसने तना दिया तो एक दफ़ा पिछले दर से हवा पर कह कूंज उठे। आज सरदार पहली दफ़ा काबू में आया था और खूब आया था। इसे दुआम की इस छेड़छाड़ में भी मोहब्बत नजर आ रही थी। मेरी छोटी सी सरदारनी माफ़ कर दो। सरदार हाथ जोड़ते हुए मोहब्बत से बोला। इसने कान भी पकड़ लिए थे, लेकिन दुआम लब्बू के डिज़ाइन बनाती बाला के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई, जिससे सरदार को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही हो। सामने इसके खानदान वाले बैठे खाना खा रहे थे। इसने एक नज़र इन्हें देखा। वो सब के सब नीचे ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाने वाले थे। वह सबके साथ नीचे ज़मीन पर ही बैठकर खाना खाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही इसके सामने एक लकड़ी का तख्ता लगाकर खाना लगा दिया गया। बाला और सरदार चारपाई के एक तरफ चौकड़ी मारकर बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ वो बैठी हुई थी। सरदार को खूब नज़रअंदाज करके आज बाला भी इसके रिकॉर्ड लगा रहा था और सरदार सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो हमेशा ही यहाँ स्पेशल ट्रीट होती थी, लेकिन आज अपने खानदान वालों के सामने अपनी इस कदर वैल्यू पर जहाँ वो खुद पर नाज कर रही थी, वहीं इसके अंदाज में थोड़ा सा गुरूर भी आ गया था। इसे अपने खानदान वालों को यह बताते हुए एक अजीब सी खुशी हो रही थी, जो जिनके लिए बोझ थी आज वो किसी के दिल की रानी थी, किसी के लिए सरदारनी थी। कबीले के लोग गुलामों की तरह इसकी खिदमतें करते थे। आज इसे ख्वाहिश ना थी इन्हें दिखाने की कि वो क्या है, लेकिन आज वो इसकी हैसियत जानकर हैरान ज़रूर हुए थे। वो गोश्त नहीं खाती थी, इसने कभी नहीं खाया था, क्योंकि इसके लिए कभी बचता ही नहीं था। इसने हर इस चीज़ की नफ़ी की थी जो इसके लिए नहीं थी। हाँ, घर में जब भी इस तरह की चीज़ बनती तब यही कहा जाता कि वो इसके लिए नहीं है। इसकी एक उस्तानी ने बचपन में इसे कहा था, बेटा यतीम का कोई नहीं होता, दुनिया की किसी चीज़ पर यतीम का कोई हक नहीं होता। और ये बात इसने जैसे अपने पास गला बांध कर रख ली थी। इसने तो सरदार को ये बात बताई ही नहीं कि ये महंगे लजीज खानों के पकवान इसने कभी चखे ही नहीं थे। अगर कभी घर में गोश्त बनता तो पहले तो बचता ही नहीं, अगर ज़रा सा बच भी जाता तो इसे उठाकर छुपा दिया जाता। ये क्या कहता है, सुबह तैयाबा खाएंगे। अपनी बेटियों को ईद पर कपड़े लेकर देते हुए इन्हें याद ही नहीं आता कि ये यतीम बच्ची पर उन्होंने हाथ रखा था। इससे दिन रात मुलाजमों की तरह काम करवाते हुए वो ये कहते थे कि इस घर के काम सिखाते हैं। कल अगर अगले घर जाएगी तो कोई ये ना कहे कि चाची ताई ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। वह जज्बात से आदी हो गई थी। शरारत और मस्तियाँ इसकी तबीयत का हासा कभी रही ही नहीं थी। कभी किसी ने नखरे उठाए ही नहीं थे तो इसने कभी दिखाए भी नहीं थे। अपने चारों बहनों को देखकर इसके जहन में बस ये ख्याल आता था कि इनके सर पर बाप का साया है और वो यतीम है। वो हर चीज़ का इल्ज़ाम अपनी यतीमी को देती थी। ना जाने कैसे इन लोगों ने इसे 12वीं तक पढ़ाने के बाद BA प्राइवेट करने की इजाज़त दे दी थी, वो भी मिन्नतें कर करके। और चाचा आप आखिरी डेट पर जाकर इसके अफाम ले आए थे। वो अपनी तकलीफ़ें बुला नहीं सकती थी, लेकिन इससे पहले कि वो एग्ज़ाम दे पाती इसके सरदार के साथ शादी हो गई और यहाँ तो इसकी दुनिया ही बदल गई। बेशक इसके सब्र का सिला अल्लाह ने दिया था। इसने आज तक किसी से शिकायत नहीं की थी। वो बस अपनी बातें अल्लाह से करती थी। हर बात इसने सिर्फ अल्लाह को दोस्त रखा था और आज इसके दोस्त ने इसे ये दिन दिखाया था। सरदार ने नरमी से नवाला इसके लबों के करीब ले जाते हुए इसे खिलाया था। वो जैसे होश की दुनिया में आई। इसने मुस्कुरा कर मुँह खुलाकर मैं खाना खा रही हूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं राज़ी हो गई हूँ। वो कब से हाथ रोककर एक ही नुक्ते को घूर रही थी, जबकि सरदार इसे देख रहा था। फिर नवाला बनाकर इसके लबों से लगाया तो उसे देखते हुए वो फिर से मुँह बनाकर बोली तो सरदार हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं मनाऊंगा ना अपने सजन साई को, खाना तो खा लो। वो प्यास से इसको हाथ को अपने हाथों में दबाता लबों से लगा गया था, जिस पर वो हल्का सा शर्मा कर हाथ छुड़ा गया। इसके चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई थी, जबकि साथ ही साथ इसने बाला की तरफ भी इशारा किया जो पूरी तरह से खाने में मगन था। इसे चोरी चोरी मेरी तरफ इशारा करने से बेहतर है कि मुझे भी एक आध बीवी ला दो यार, मैं शदीद कवारा हूँ। बाला मासूमियत से बोला तो सरदार ने इसे घोड़ा जबकि दुआम निगाहें झुकाती पूरी तरह से खाने की तरफ मुतवज्जो होगी। इसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी। वो सरदार की बातों और बाला के छेड़छाड़ को खूब इंजॉय कर रही थी। खाना खाने के बाद दुआम के खानदान वालों ने सरदार से जाने की इजाज़त चाही। वो सरदार के पास आकर जाने की इजाज़त मांग रहे थे, जबकि सरदार अपनी सरदारनी को किसी भी तरीके से मनाने में मसरूफ़ था। वो इसके खानदान वालों को फिलहाल पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा था। इस वक्त के लिए इसे अगर कुछ अंत था तो उसकी सजन साई थी। सरदार को पता था कि दुआम अभी तक पूरी तरह राज़ी नहीं हुई है। आखिर का सरदार दुआम के सामने ही ज़मीन पर बैठ गया। माफ़ कर दो ना यार, और कितना सताओगे, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखो कैसे दिल धड़क रहा है। वो यूँ ही ज़मीन पर बैठे बैठे दुआम का हाथ पकड़े अपने सीने पर रख चुका था। इसके चेहरे पर इल्तिजादी आंखों में सच्ची मोहब्बत झलक रही थी जो सिर्फ दुआम के लिए थी। मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है ये दिन, माफ़ कर दो यार, एक दफ़ा माफ़ कर दो। ज़िंदगी में कभी कोई जश्न नहीं मनाऊंगा तुम्हारे बगैर। इसके हाथों को अपने लबों से लगाता इसकी हथेली को चूम रहा था। इसका बस यही कोशिश थी कि किसी तरीके से दुआम मान जाए। सरदार के हाथों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट, वो साथ साथ दुआम की हल्की सी नाराज़गी का लुत्फ़ भी उठा रहा था। दुआम की नाराज़गी भी दिलदार की जान थी। जबकि दुआम ने अपने बेहद करीब खड़े ताया चाचा को देखा जो अब भी खौफज़दा और सहमे हुए थे। इनके चेहरे पर एक अजीब सा तासर था। वह इन्हें नज़रअंदाज करती सरदार की तरफ मुतवज्जो हुई, जबकि सरदार ने आहिस्ता से दुआम के हाथ में
कुछ थमाया। तो हम भी यकीनी से अपने हाथ में मुझे छोटी सी कैरी को देख रही थी। इसे यकीन आया कि सरदार इसे मनाने के लिए कैरी देने को तैयार हो गया। इसके चेहरे पर हैरत के साथ खुशी की लहर दौड़ गई। हाय डाकू जी, ये आप मेरे लिए लेकर आए हैं? वो बेयकीनी से पूछने लगी। खुशी ऐसी थी जो सवाल ही नहीं जा रही थी। सरदार ने कंधे उचकाए जैसे कह रहा हो और किसके लिए। डॉन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और अगले ही लम्हे पाव बिना किसी की परवाह किए सरदार की बाहों में समा गई। इसके सामने बैठे खानदानों वालों की मौजूदगी भी इसे महसूस नहीं हुई थी। जमीन पर बैठे हुए जिस अंदाज में इसके गले गिरी, जहाँ सरदार सुकून से इशारा हो गया था, वहीं ताया चाचा ये नज़ारा देखते हुए एक दूसरे को देखकर रह गए। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ताई तो बाकायदा कानों पर हाथ लगा रही थी। हाय अल्लाह, ये क्या देख लिया? इन लोगों का बनाना था कि यहाँ का दुआम बहुत बेशरम हो गई है। जबकि समीरा वहाँ के चेहरे पर देखते हुए दुआम के बदले हुए अंदाज को देख रही थी। महंगे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, ऐसी जो किस्मत अमीरजादियों और शहजादियों की होती है जो दुआम को मिली थी। समीरा की आंखों में हसरत और हैरत दोनों थे। इसे यकीन था कि ये वही दुआम है जिसे घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मेरी सज्जन साईं, तुम्हारी खुशी के लिए सरदार अपनी जान दे दे। ये केरी क्या चीज़ है? अब तो खुश होना, सरदार नहीं नाराज़ नहीं होना मुझसे। वो खुद मोहब्बत से इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला। तो दुआम ने फ़ौरन नफी में सिलते खुद को इसके सीने में छुपा लिया। आप लोग अभी तक यहाँ से दफ़ा, मेरा मतलब है ये नहीं, अब क्या यहाँ रहने का इरादा है? बाला ने तया के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा था। वो ज़रा सा हड़बड़ा गए थे। हम सरदार से इजाज़त मांगने आए थे। हाँ, जैसे तुम लोग सांस भी सरदार की इजाज़त से लेते हो। होना हो गई दावत। जाओ यहाँ से। अब यहाँ सिर्फ कबीले के लोग ही रुकेंगे। बालानी ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए मीरू को भी साथ भेजा था कि वो कबीले के बाहर तक छोड़ कर आए, जबकि वो खामोशी से मीरू के साथ पीछे निकल गए। और इधर सरदार दुआम को अपनी बाहों में बड़े से यकीन दिला रहा था कि आइंदा वो इसके बगैर कोई भी जश्न नहीं मनाएगा, जबकि वो इसके पास ज़मीन पर बैठी इसकी बाहों में बुरी तरह से कैद खूब नखरे दिखा रही थी। महफिल खत्म हो चुकी थी। सरदार दुआम को अपने साथ वापस कमरे में ले आया था। वो बेतहाशा खुश थी। इसके चेहरे पर जश्न की रौनक अभी भी बरकरार थी, लेकिन कुछ सवाल थे जो उसे बुरी तरह से इल्झा रहे थे। वो तो जान गई थी कि अपने डाकू जी के साथ निकाह के अलावा भी इसका कोई तल्लक है, लेकिन क्या ऐसा कुछ भी नहीं था? क्या ऐसा कुछ भी था जो इसे छुपाया जा रहा था? इसे अकरम की बातें याद आ रही थी। इस रात अकरम और तैयार चाचा ने इसे जो कुछ भी बताया था वो इस वक्त समझ नहीं सकी थी, क्योंकि इस वक्त इसके ज़हन पर सिर्फ और सिर्फ ये बात सवार थी कि वो लोग इसे सरदार के खिलाफ करना चाहते हैं। लेकिन अब अंदाज़ा हुआ था कि सरदार की ज़िंदगी के कुछ तल्ख पहलू थे जिनसे वो वाकिफ़ नहीं थी। वो इसके सीने पर सर रखे खामोश थी, जबकि सरदार इसे कमरे में लाते हुए बेड पर लटा चुका था। सचिन साईं, तुम ये कपड़े चेंज कर लो, काफ़ी भारी लिबास है। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूँ। सरदार ने नरमी से इसके चेहरे पर हाथ फेरा। इसके लबों के किनारों को छू गया। तो हम हैरान रह गए। इसे कैसे पता चला कि बस सवाल करने वाली है? आपको सब कुछ पहले कैसे पता चल जाता है? बहुत ज़्यादा देर अपनी हैरत छुपा नहीं पाई थी। इसकी आवाज़ में मासूमियत थी, जबकि इसके अंदाज पर सरदार नरमी से मुस्कुराया और साथ ही इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे अपने करीब कर गया। तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। वो नरमी से इसकी आंखों पर बारी बारी इसने बारी बारी इसकी आंखों पर लब रखे, जबकि वो शर्म से नजरें झुका गई। इसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। ऐसे शर्माओ मत। तुम्हारी आंखें बेतहाशा हसीन है, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत शरारती भी हैं। शरारतें भी छुपती नहीं हैं यहाँ पर। वो बोला तो दुआम ने घूर कर इसे देखा। इसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। अभी क्या कह रही हैं मेरी आंखें? बस घूरते हुए सवाल करने लगी। इसकी आवाज़ में चैलेंज था। तुम्हारी आंखें कह रही हैं जैसे ही तुम्हारे डाकू जी को कपड़े बदलने वाशरूम में बंद होगा तो तुम पीछे से गेरी खाओगे। सरदार इसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए बोला। तो आपकी दफ़ा दुआम का मुंह खुल गया था। इसकी आंखें हैरत और शर्मिंदगी का मिला इसकी आंखों में हैरत और शर्मिंदगी का मिला जुला तासर आपको कैसे पता चला? और परेशानी से देखते हुए बोलते हुए सरदार का क्या लगाकर हंसता है। इसके करीब से उठते हुए इसके कपड़े अलमारी से निकालने लगा। इसकी हंसी में शरारत और प्यार दोनों थे। अभी तो बोला ये सब बता देती हैं। वो हंसते हुए इसके पास आते हुए नरमी से इसकी चादर से अलग करने लगा। चुगल हो रहे मेरी आंखें। वो जैसे फैसले पर पहुँचते हुए मुँह बनाकर बोली। तो सरदार ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। इसकी होंठों पर एक दिलकश तबस्सुम था। मुख पर है मेरी। वो इसके फ्राक की डोरियाँ खोलते हुए बोला। तो वो घबरा कर इसका बाजू थाम गई। इसके चेहरे पर घबराहट के आसार नुमाया थे। मैं खुद चेंज कर लूँगी, ज़्यादा फ्री ना हूँ मेरे साथ। अभी पूरी तरह राज़ी नहीं हूँ मैं आपसे, बस थोड़ी थोड़ी राज़ी हूँ। तो हम अपने कपड़े लेकर इसकी बेबाक निगाहों से बचने की खातिर फ़ौरन वाशरूम में छुप गई थी। सरदार कहका लगाकर हंसता अपने कपड़े निकालने लगा। मैंने यहाँ कैरी रखी थी, किधर गई? तो हम फ्रेश होकर बाहर आई तो सरदार भी कपड़े बदल चुका था। वो इसके पास आई तकिए के नीचे अपनी कैरी ढूंढने लगी। जब इसे कैरी नहीं मिले तो इसने सरदार को ऐसे देखा जैसे इसने इसकी कैरी चोरी कर ली। उसकी आंखों में शक और मासूमाना गुस्सा था। मेरा सोना मुखड़ा अगर यहाँ रखी थी तो फिर यहीं पर होगी ना? सरदार ने भी तकिया उठाकर चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन कैरी वहाँ नहीं थी। इसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। डाकू जी, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी कैरी वापस कीजिए। वो इसे घूरकर अपने हाथ सामने कर चुकी थी। इसकी आवाज़ में हुक्म और नाराज़गी थी। मैं क्या तुम्हें चोर लगता हूँ जो तुम्हारी कैरी चुरा लूँगा? सरदार ने इस तरह से कैरी मांगने पर से घूर कर देखा। इसकी आंखों में शरारत थी। आप चोर नहीं, पूरे के पूरे डाकू हैं। लाइए मेरी कैदी वापस कीजिए। वो हर तरह से इसे देखने लगी। कभी इसके पीछे हो जाती, कभी इसके आगे जाकर इसे घूरती। सरदार को जहाँ इसके हरकतें मजा दे रही थी वहीं कैदी छुपाकर वो पसगुल हो गया था। इसे याद ही नहीं रहा था कि बाला इसे पहले से शाम को कैरी खिला चुका है। डाकू जी, मेरी कैरी गुम हो गई। वो परेशानी से इसे देखकर बोली। इसकी आवाज़ में हल्का सा खौफ था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें ठीक से याद है? तुम कमरे में लेकर आई थी। पंजान बनने लगा जैसे इसे कुछ मालूम ही ना हो। मैं वहाँ नीचे बैठी हुई थी, आपने मुझे वहाँ कैरी दी थी। तब मैंने इसे
तब मैंने अपने दुपट्टे में छुपा कर रखी हुई थी, फिर मैं ऊपर लेकर आई थी। अभी वॉशरूम जाने से पहले मैंने तकिए के नीचे रखी थी। वो पूरी कहानी याद कर रही थी, इसके चेहरे पर उलझन नुमाया थी। तो फिर ढूंढो तकिए के नीचे, यहीं पर होगी। सदा ने इसकी पूरी कहानी सुनने के बाद दोबारा से ढूंढना शुरू कर दिया, जबकि वो भी इसके साथ ही ढूंढने में मगन हो गई थी। इसके चेहरे पर बेचैनी थी। तुम्हें ठीक से याद है ना मेरा सोना मुखड़ा तुम लेकर आई थी? वो फिर से पूछने लगा। इसकी आवाज़ में खास दबाव था। सच, मुझे याद है, मैं लेकर आई थी, यहीं रखी थी। तो हमने जोर देकर कहा। तो फिर कहाँ चली गई? सदा ने हैरत से पूछा, जैसे वो खुद भी परेशान हो। तुमने पक्की बात है यहाँ तक कि नीचे ही छुपाई थी? वो फिर से पूछने लगा। तो दुआम्बा हैरत में मुब्तला हो गई। इसे कन्फ्यूज़ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही। ये बात तो सरदार शुरू से ही समझ चुका था, लेकिन इसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर थी कि वो थोड़ी देर पहले की कोई बात भी दिमाग से निकाल देती थी। ये इसे आज पता चला था। मुझे याद है, कच्चा पक्का याद है, वो अटकते हुए बोली। तो सदा ने अचानक से बाजू थाम को इसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। इसकी आंखों में मोहब्बत और शरारत का मिला जुला रंग था। मुझे लगता है तुम इसे नीचे छोड़कर आ गई हो और आप भूल चुके हो। इसे छोड़ो, ये बताओ, तुम मुझसे कुछ पूछने वाली थी, तुम्हें ये तुम्हें याद है या नहीं? सदा ने नरमी से इसके बाल गर्दन से हटाते हुए सवाल करने लगा। तो हमने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। केरी की तलाश एक लम्हे में इसके जहन से ख़त्म हो चुकी है। अब इसके जहन पर सदा से सवाल करने की बात हावी हो गई थी। हाँ तो बताओ, क्या पूछना चाहती हो तुम? सदा बेड पर बैठे हुए दुआम को पूरी तरह से अपने हिसार में ले चुका था। इसकी आंखों में गहरी चाहत थी। दुआम ने इसे देखा और सवाल किया, ये सच है कि आप मेरी फूफो के बेटे हैं? इसने नरमी से हाँ में सर हिलाया। उसकी गर्दन पर अपने रख दिए। दुआम की आंखों में हैरत और खुशी की चमक आ गई। है सच्ची? सकी वाली फूफो के? वो एक्साइटेड हो गई, जैसे इसे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली हो। हाँ सच्ची, सकी वालू पप्पू का बेटा हो। तुम्हारा एक ही पप्पू थी, ज़हरा नाम था इनका। सदा ने प्यार से इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए जवाब दिया। तो क्या अब वो इस दुनिया में नहीं है? वो पलट कर इसे देखते हुए बोलते। सदा ने नफ़ी में सर हिलाया। इसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गया। आपके बाबा भी नहीं है? इसने एक और सवाल किया। तो सदा ने इसकी मासूमियत पर फिर से नफ़ी में सर हिलाया। इसकी आंखों में एक लम्बे को गहरा दुख छलका। मेरे भी नहीं है, कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे के हैं। वो पलट कर इसके सीने से लगते हुए इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बांध के इसका अंदाज इतना मासूमाना था कि सदा हैरान रह गया। वो तो सोच रहा था कि शायद वो इससे बहुत सारे सवाल करेगी, अपने खानदान, अपने माजी के बारे में सब कुछ पूछेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। दवाम को बस इस बात से सुकून मिला था कि वो अकेली नहीं थी। हाँ, मैं तुम्हारा और तुम मेरी। सदा ने नरमी से इसको कहा। इसके चेहरे पर झुकता हुआ इसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। गहरा बोसा इसकी होठों पर सजा दिया। और मेरी केरी दुआम को अचानक याद है तो इसने सदार के सीने से सर निकाला और मासूमी से पूछा। सदार के लबों पर शरारत फिर से दौड़ गई। इसे तो हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। वो इसे मजीद अपने करीब करते हुए बेड पर लेट आता। इस पर साया फकन हो गया, जबकि दुआ मजीद कुछ भी ना पूछ पाई थी। इसकी साइड वो जो सरदार उसकी कुर्बत पर मरकूज हो चुकी थी। वो लोग कबीले से वापस आए तो अगली शाम को अकरम अपने लोगों से मिलने के लिए आ गया। इसने जब ताया अब्बा, ताई अम्मी, चाचा और चाची की हालत देखी तो वह खुद हैरान रह गया। इसके चेहरों पर जख्मों के निशान और आंखों में मौजूद खौफ बता रहा था कि यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है। ताई अम्मी फ़ौरन के करीब बैठकर से सब कुछ बताने लगी कि डाकू ने किस तरह के घर में आकर लोगों के साथ बदसलूकी की और फिर इन्हें ज़बरदस्ती कबीले में बुलाया गया। इनकी आवाज़ में दर्द और बेचारगी थी। करीब सब कुछ सुनकर समझ चुका था कि दुआम इस मामले में इसका बिल्कुल भी कोई साथ नहीं देने वाली से। ये मामला अपने तरीके से ही हल करना था। मुझे अफसोस है, इस मामले में आप लोगों की मदद नहीं कर सकता है। मैं आप लोगों से इजाज़त लेने आया था कि मैं रुबाब को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। दरअसल मेरी फैमिली मिलना चाहती है इसे। वो अचानक से बोला तो ताया और ताई दोनों ही हैरान रह गए। इनकी आंखों में बेयकीनी थी। तो बस यही डर लग रहा था कि कहीं अकरम का आकर इन लोगों के सामने ही इनकी बेटे को तलाक ना सुना दे। इनकी आंखों में फ़ौरन एक उम्मीद की किरण जागी। मेरे घर में ज़्यादा कोई नहीं है, बस सिर्फ एक बहन है और एक मेरी अम्मी है। मेरी अम्मी फालिज की वजह से चल फिर नहीं सकती। मेरी बहन डॉक्टर है, जिसे अस्पताल में हम ये सारा ड्रामा किया था वहीं पर इंटर्नशिप कर रही है। अकरम ने निहायती ठहरे हुए अंदाज में अपने घर के हालात बताए। मेरे बाप को कल सुबह लेकर जाऊँगा, शाम तक वापस ले आऊँगा। इस मामले को बीच में लटकाने का फ़ायदा नहीं, मैं रुखसती चाहता हूँ। वह नरमी से बोला। इसकी लहजे में कोई जज्बातीपन नहीं था, बल्कि एक मजबूत इरादे की झलक थी। सबके सामने बैठे वो दोनों माँ बाप तो जैसे जी उठे थे। इनके चेहरों पर फैली मायूसी और परेशानी एकदम गायब हो गई थी। वो तो अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थे। अब वो तो बाकायदा हाथ जोड़ लिए थे इनके सामने। इसकी आंखों में ताशुक्र के आंसू तैर रहे थे। रबाब खामोशी से अंदर बैठी इसकी सारी बातें सुन रही थी। इसने किसी तरह का कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। इसके चेहरे पर पत्थर जैसी खामोशी थी। बेटा, तुम्हारा एहसान है जो तुमने कोई गलत फैसला नहीं किया। तैयबा ने लरजते हुए हाथ जोड़कर अकरम को देखते हुए कहा। इनकी आवाज़ में हर दर्जे आजिज़ी थी। मैं कोई गलत फैसला क्यों करूँगा? डाकू को पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है, रबाब की नहीं। अकरम ने एक धीमी मैनी हेयर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ठीक है बेटा, कल तुम सुबह आ जाना। रबाब तैयार होगी तो तुम इसे अपने साथ ले जाना, हमें कोई इतराज़ नहीं। तैयबा ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। रबाब अपने कमरे में खामोश बैठी। इसकी आंखें खाली थी, जैसे वो कुछ गहरा सोच रही हो। इसके अंदाज जैसे अंदर सब कुछ जम सा गया हो। सॉरी। बाला आज हाथ पर एक गहरा जख्म लेकर अस्पताल पहुंच गया था। इसके सीधे हाथ पर पट्टी बंदी थी, जो बाज़ाहिर एक मामूली चोट लग रही थी, मगर इसके चेहरे पर परेशानी के गहरे साए थे। वो डॉक्टर बेला का मुंतज़र था, मगर रिसेप्शन पर मौजूद डॉक्टर्स ने इसे बताया कि वो आज आई ही नहीं है। सुनकर इसकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई। इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। डॉक्टर बेला आज क्यों नहीं है? कहीं इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है? इसने फ़ौरन रिसेप्शन पर मौजूद औरत से वजह जानी। इसकी आवाज़ में हुक्मी अंदाज था। मुझे वो अपनी किसी खास मालकियत के बारे में पूछ रहा हो। इसे यह हक हासिल हो
कि इसे हर सवाल का जवाब मिले। इसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे अगर इसे तसल्ली बख्श जवाब न मिला तो वो यहाँ हंगामा कर देगा। पता नहीं, शायद कोई फैमिली डिनर का बता रही थी। रिसेप्शन पर मौजूद औरत ने हकला कर जवाब दिया। इसकी आवाज़ में खौफ का अंसर शामिल था, जैसे सरदारों उसकी डाकुओं के पिछले अस्पताल के दौरे की याद आ गई हो, जबकि जब चुमरू को लाया गया था। डाकुओं का डर इन सारे ही डॉक्टरों और अस्पताल के अमले पर बुरी तरह से असरअंदाज था। इन्हें आज भी वो खौफनाक दिन याद था। बाला ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। इसके दिल और दिमाग पर फैमिली डिनर का लफ्ज़ हथौड़े की तरह बरस रहा था। वह किसी और सवाल के लिए रुका नहीं और तेजी से बाहर निकल आया। अस्पताल के बाहर आकर भी इसके कदम नहीं रुके थे। इसके जहन में तफ्शीश की लहरें दौड़ रही थी। डिनर कहीं कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं आ रहा, कहीं कोई शादी वादी का चक्कर तो नहीं चल रहा। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो इसे किसी भी पल चैन नहीं लेने दे रही थी। ऐसे कैसे? पहला तो सिर्फ बाला की है, वो सिर्फ मेरी है। इसका जहन बार बार यही दोहरा रहा था। मगर ये बात इसे बेला को भी तो बतानी थी, जो अभी तक इस सब बातों से बेखबर थी। वो अपनी सोचों में गुम बेमकसद कदम उठाता आगे बढ़ता चला जा रहा था। इसकी आंखों के सामने बेला का चेहरा घूम रहा था। इसे किसी भी कीमत पर मालूम करना था कि आखिर बेला आज क्यों नहीं आई। चंद लम्हों में ही बाला मालूम कर चुका था कि बेला का घर कहाँ है, और वो सीधा बेला के घर आ पहुंचा था। घर कोई बहुत बड़ा न था, एक छोटा सा मकान था। तकरीबन 4 कमरे थे। ज़मीन में बना वो घर एक बड़े से नीले रंग के लोहे के गेट से छुपा हुआ था, जिसके एक साइड पर एक बड़ा सा दरख्त लगा हुआ था। दूसरी तरफ दीवार थी। इसने एक नज़र में बाहर खड़े ही घर को अंदर तक समझ लिया था। इसे रास्ते से दरवाज़ा पर जाना चाहा तो एहसास हुआ कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। इसे इस हरकत पर गुस्सा आया। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि घर के अंदर कौन कौन मौजूद होगा। ये क्या तरीका है? इस दरवाज़ा खुला क्यों रखा हुआ है? कोई भी अंदर आ सकता है, लेकिन कोई भी आ सकता है तो वही क्यों नहीं? वो अंदर दाखिल होते हुए दरवाजे से एक साइड लगे कुंडे को हल्का सा हरकत देता बंद कर चुका था। अंदर बरामदे के चारों तरफ लोहे की जाली लगी हुई थी और बरामदे के अंदर की तरफ बाकी के कमरे थे। छोटा सा खूबसूरत मकान था, जिस पर जगह जगह पौधे वगैरह भी लगाए गए थे। बाला जाली के दरवाजे के करीब आकर रुका और अंदर झांकने लगा। सामने 3 कमरे थे, जिनके सामने नेट के पर्दे लगे हुए थे, जो शायद अंदर चलने वाली पंखों से काफ़ी बुलंदी तक उड़ रहे थे। किचन में कुछ बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। सामने वाले कमरे में से खिड़की के पास एक वजूद लेटा हुआ नजर आया, तो वो हल्के से कदम बढ़ाते हुए इस कमरे की तरफ झांकने लगा। साफ सुथरा मकान, ज़मीन पर टाइलें लगी हुई थी, सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा था। इसने अंदर कदम में झांका तो एक वजूद बिस्तर पर शायद गहरी नींद में डूबा हुआ था। इसने अंदाज़ा लगाया कि कोई औरत थी जो काफ़ी फ्रेब जिस्म की मालक थी। कमरे के अंदर छोटा सा दरवाज़ा था जो इस वक्त खुला हुआ था। वहाँ पर भी इसी तरह का पर्दा लगाया गया था। अंदर शायद कोई स्टोर का सामान पड़ा हुआ था, क्योंकि इसे बाहर से ही कुछ लोहे के बक्से नज़र आ रहे थे। वो पलटकर इसी दूसरे कमरे में झांकने लगा, हालांकि जहाँ से किचन से आवाज़ आ रही थी सिर्फ वो नहीं गया था। दूसरा कमरा भी काफ़ी साफ सुथरा था। सामने डबल बेड भी बिछा हुआ था, साइड पर सोफा पड़ा हुआ था। ऊपर इंस्पेक्टर अकरम की तस्वीर लगी हुई थी। वो अंदाज़ा लगा चुका था ये कमरा इंस्पेक्टर अकरम का ही है। बस कमरे से निकलते हुए अगले कमरे की तरफ आया तो सामने ज़मीन पर पिछा कालीन खूबसूरत था। ये कमरा बाकी सब कमरों से काफ़ी बड़ा था और कुछ चारपाइयों को तरतीब के साथ रखा गया था, जबकि एक तरफ सोफा था। अंदाज़ा हुआ कि शायद वो कोई बैठक वगैरह थी, क्योंकि इसका दरवाज़ा बाहर गली की तरफ भी खुल रहा था, जो इस वक्त पूरी तरह हाथ से अंदर से बंद था। वो बाहर निकलते हुए एक ही नज़र में पूरे बरामदे को भी देख चुका था, जहाँ पर चारपाइयाँ लगी हुई थी। ऊपर खूबसूरत चादरें बिछाई गई थी। जाली के साथ साथ पौधे रखे हुए थे। बाहर की तरफ जिनसे निकलती बेलें जाली को भी कवर कर रही थी। घर इसे काफ़ी पसंद आया था। जो बाप का हो चुका ससुराल और इसका होने वाला ससुराल काफ़ी खूबसूरत था। छोटा सा था, लेकिन खास तवज्जो और मेहनत से खूबसूरत छोटे से मकान को खूबसूरती से निखार दिया गया था। अब इसके कदम किचन की तरफ बढ़े, जहाँ बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। क्या पका रही है? बाला अचानक किचन में दाखिल हुआ और बोला। बेला जल्दी से खाना बनाने में मसरूफ थी और घबराकर से देखने लगी और फ़ौरन अपना सर पर दुपट्टा रखा। इसकी हैरत की इंतहा न रही थी। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेला ने परेशानी से पूछा। बाला अपनी आंखों के अलावा पूरा चेहरा छुपाए हुए था, सिर्फ इसकी आंखें नजर आई थी। बस तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। मेरे हाथ पे चोट लगी थी, देखो कितना गहरा है। बाला ने अपना पट्टी बंदा हाथ इसके सामने किया। अस्पताल गया तो पता चला कि तुम आई ही नहीं, फिर तुम्हारे घर आना पड़ा अपनी पट्टी बनवाने के लिए। क्या आप अपनी पट्टी बनवाने के लिए मेरे घर तशरीफ लाए हैं? वहाँ अस्पताल में आपको कोई डॉक्टर नज़र नहीं आई? बेला ने गुस्से से पूछा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसके पीछे यहाँ तक आ जाएगा। डॉक्टर तो बहुत सारी थी, मुझे डॉक्टर बेला नज़र नहीं आई, और तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे सिर्फ डॉक्टर बेला से ही मतलब है। अब इतने जख्म खुद को मैं डॉक्टर बेला के लिए लगाता हूँ, हर अधिकारी डॉक्टर के लिए नहीं। इसकी बात सुनकर बेला का मुंह खुला रह गया। खुशबू बड़े मज़े की आ रही है कि बना क्या रही हो तुम? इतना अच्छा खाना भी बना लेती हो। खुशबू से अंदाज़ा हो रहा है कि तुमने कुछ मज़े का बनाया है। चलो पहले पट्टी बांधो, फिर खाना खाता हूँ, तुम्हारे हाथ का खाना। बाला कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहा था, वो जैसे अपना हक जमा रहा था। बेला इससे गुस्से से घूर रही थी, लेकिन इसकी हालत देखकर कुछ नहीं कह पा रही थी। इसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के आसार नुमाया थे। शटाब, आप यहाँ अंदर कैसे आए? दरवाज़ा तो बंद था, आप मेरे घर के अंदर क्यों आए हैं? बेला इसकी साइड से निकलते हुए किचन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो छोटे से किचन में इसके सामने खड़े रहते हुए बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जैसे फील करके बाला खुद ही पीछे हट गया। मैं यहाँ खुले दरवाजे से अंदर आया हूँ और तुम इतनी बेवकूफ़ लड़की हो। तुम्हारी वालदा शायद अंदर सो रही है और तुम यहाँ किचन में काम कर रही हो। दरवाज़ा तुम दोनों ने खुला रखा हुआ है। बाला ने इसे घूरते हुए बोला।
कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर देती। तुम्हारे बेवकूफ़ भाई इंस्पेक्टर भाई ने तुम्हें इतना नहीं समझाया कि दरवाज़ा बंद कर देते हैं। गलती बेला की थी, लेकिन वो होता कौन था इसे सुधारने वाला। भाई ने मुझे कहा था दरवाज़ा बंद करने के लिए, मैंने सोचा बस ये काम ख़त्म करके बंद कर दूँगी। मुझे क्या पता था आप जैसे बिन बुलाए मेहमान आकर यहाँ टपक जाएंगे। निकलिए मेरे घर से, आपको जो भी करवाना है अस्पताल आकर करवाएँ। मैं यहाँ आपकी कोई पर्सनल डॉक्टर नहीं हूँ जो आप वो अभी बोल ही रही थी जब अचानक ही बेला के करीब आता इसे दीवार के साथ लगाते हुए इसके दोनों हाथ दीवार पर रख चुका था। बेला का सांस हलक में अटक गया। तुम मेरी पर्सनल डॉक्टर हो, तभी तो सिर्फ तुम्हारे पास आता हूँ। और एक बात कान को सुन लो, मुझे एहतियाती पसंद नहीं है। तुम्हारा भाई क्या कहता है क्या नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज के बाद ये दरवाज़ा इस तरह से खुला हुआ नहीं होना चाहिए, मेरे लिए भी नहीं। बाला की आवाज़ में एक सख्ती थी, इसकी आंखों में गहरी नज़र थी। और मुझे कोई शौक भी नहीं है यहाँ ज़्यादा वक्त बर्बाद करने का। जल्दी से पट्टी करो मेरी और जो बनाया है वो खिलाओ। मुझे भी जाना है, काम है, मुझे काम है तो जाकर काम कीजिए और निकलिए मेरे घर से। आप इस तरह से मेरे घर में नहीं आ सकते। मैं इसकी बात को अहमियत नहीं दे रही थी, इसकी आंखों में गुस्सा था। लगता है तुमने सुना नहीं। मैंने कहा पट्टी बांधो, बाला ने दहाड़ते हुए कहा। इसकी आवाज़ में अब हुक्म था। बेला इसे देकर काम करेगी। आवाज़ कम रखिए, आप मेरे घर में आकर आप मुझ पर इस तरह से चिल्ला नहीं सकते। बेला एक लम्हे के लिए घबराकर पीछे हटे और दरवाजे की तरफ देखने लगी थी। इसकी अम्मी सो रही थी और दवाई खाकर इसके वक्त आराम करती थी। अगर वो जाग जाती थी उनकी नींद पूरी तरह से ख़राब होती। वो बहुत बीमार थी। पट्टी बांधो, आवाज़ भी कम हो जाएगी और मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा। बाला धमकी देते हुए वहीं सोफे पर फैलकर बैठ गया। इसकी आंखों में एक फताना चमक थी। अब बेला को डर लग रहा था। अगर कोई इस तरह से आ जाता और उस गैर इंसान को घर में देख लेता तो बेशक इसकी वालदा घर पर थी, लेकिन इनकी कंडीशन ऐसी थी कि वह सूरत हाल को इसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वह सूरत हाल को संभाल पाती। और वो क्या जवाब देती कि वो कौन था, यहाँ क्यों आया था। वो परेशानी से कमरे में गई और फ़ौरन ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। इसने अपने जरखाना अंदाज में पट्टी करनी शुरू की कि जैसे इसका हाथ ही उखाड़कर इसके हाथ से अलग कर देगी। इसके हाथ का दबाव बताना चाह रहा था कि वो कितनी जालिम थी, जबकि इसके अंदाज पर बाला मुस्कुराते हुए खुशी से पट्टी बंधवा रहा था, जैसे अपने हाथ तुड़वाने के लिए ही यहाँ आया हो। इसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। हो गई पट्टी, अब निकलिए यहाँ से। बेला पट्टी बांधती हुई गुस्से से देखकर बोली। इसके हाथ में काफ़ी गहरा निशान था। कम से कम 2 टांके तो लगने थे इसे, लेकिन इसने नहीं लगाए थे क्योंकि इसे यहाँ से जल्दी से जल्दी वाला को बेचना था। ठीक है, पहले खाना खिलाओ, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर जाऊँगा। वो बड़े मज़े से कहकर अपना सर से कपड़ा खोलकर एक तरफ रख चुका था। इसका चेहरा पूरी तरह से इसके सामने आ चुका था। वो पहली दफ़ा बाला का चेहरा देख रही थी, जबकि बेला की निगाहें इसके चेहरे पर जम सकी थी। इसकी आंखों में हैरत और कुछ और ही था जो वो समझ नहीं पा रही थी। बाप मेरी बच्ची, क्या हो गया है तुझे, इस तरह से खामोश क्यों रहने लगी है। अब तो अकरम भी तेरे साथ है। ठीक है, तकरीबन 11 के करीब अकरम बाप को लेने के लिए आ गया था। इसकी गाड़ी का हरण करके बाहर गुजरा तो बाप ने चादर संभाली। वो हल्की फुल्की सी तैयारी कर रही थी, बिल्कुल खामोशी से तैयार हो चुकी थी। इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था, जैसे पत्थर की मूर्त बन चुकी हो। इसकी आंखें खाली थी, इसमें गहरी वीरानी छाई हुई थी जो इसके दिल को बेचने का पता दे रही थी। ताई अम्मी ने इसे देखा तो इसका दिल कट कर रह गया। इनकी हंसती खेलती बेटी न जाने क्या हो गया था इसे। वो परेशानी से रुबाब के करीब आई, उनका हाथ थाम लिया। रुबाब, क्या हो गया है तुझे, अब तो तुझे खुश होना चाहिए ना। अकरम तेरे साथ ठीक हो गया है और अकरम के साथ मेरे ठीक होने में और सब कुछ ठीक होने में बहुत फ़र्क है अम्मी। खैर मैं जा रही हूँ। और आपने एक लंबी ठंडी सांस ली और बेतासर लहजे में जवाब दिया। इसकी आवाज़ में एक गहरा सन्नाटा था, जैसे इसके अंदर सब कुछ टूट फूट गया हो। इससे बाहर शिकारी के हरन की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, जो अब ज़्यादा तेज़ और बेसब्र थी। वो मज़ीद कोई बात किए बगैर खामोशी से खुद पर चादर ओढ़ती बाहर निकल गई। इसके कदमों में कोई तेज़ी नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी, बस एक बेहद सी कैफियत। तायम्मी से देखती रह गई। इनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। इनका दिल इस सोच में दहल कर रह गया था कि एक शख्स की मोहब्बत और फिर वो शख्स भी जो इसका महरम था, इनकी बेटी को किस हाल पर पहुंचा दिया था। बाप की खामोशी और आंखों की वीरानी अंदर तक लर्जा रही थी। वो जानती थी कि इनकी बेटी अब वो नहीं रही जो पहले थी। वो बस बेबसी से जाते हुए देखती रही। फिर पता है आपको, जुमरू भैया डाकू जी ने मेरी चाची के बाल काट दिए, इनको गंजा नहीं किया। फिर गंजी तो वो बहुत ही बुरी लगती ना, लेकिन कटे हुए बालों से भी वो ऐसी फ़नी लग रही थी ना, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। आपको पता है जब मुर्गी पानी से नहाकर निकलती है और ऐसे फड़फड़ाती है ना, तो इनकी जो लुक होती है बिल्कुल सेम टू सेम मेरी चाची वैसे ही लग रही थी। दम एक्साइटेड होकर जुमरू को बता रही थी, जब जुमरू इसकी बातें सुनकर हंस रहा था। वो दोनों नदी के पास बैठे हुए थे। जुमरू परसों महफिल में शरीक नहीं हुआ था क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा दर्द था और वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से किसी और की खुशी कम हो। वो जानता था कि जब तक सरदार की ज़िंदगी में ये प्यारी सी लड़की है, सरदार जश्न मनाता रहेगा और वो हर जश्न में इसका साथी रहेगा। तो इसे कोई फिक्र नहीं थी, वो इस जश्न में शामिल नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरह से दुआ में एक्साइटेड होकर इसे बता रही थी, इसके ताया और चाचा और चाची के भी शामिल थे। इसकी हालतें क्या थी, जुमरू को तो एक बहुत ही अहम जश्न मिस करने का अफसोस होने लगा था। अच्छा छोड़ो भाभी, तुम ये बताओ कि तुम्हारी केडी मिली या नहीं। जुनू ने अचानक से इसका गम याद करवाया तो वो मुँह बना गई। नहीं मिली, वो गुम हो गई। मैं तो हर जगह ढूंढी, मुझे नहीं मिली। खैर आज मैंने बाला भैया को ज़बरदस्ती भेजा है, जाइए शहर अपने डॉक्टर से मिल कर आइए, फिर देखिएगा कैसे केडियों की लाइन लगती है मेरे आगे। इनकी पास कहानी होगी जिसे सुनाने के लिए
بندہ چاہیے ہوگا، اور بندہ تو کیری کے بغیر ہاتھ نہیں آئے گا نا۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی تو اس کے دماغ پر جملوں نے ہلکی سی چپیڑ رسید کی۔ اسی دوران سردار بھی وہیں ندی پر آ گیا۔ بالا کو تم نے کہیں پر بھیجا ہوا ہے؟ یہاں کے پل میں کتنے کام پڑے ہیں اور وہ شہر گیا ہوا ہے؟ میرو سے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں بتا کر گیا ہے۔ سردار سیدھا اس کے سر پر سوار ہوا۔ اس کی آواز میں جلجلاہٹ تھی۔ ہاں تو وہ پیار کرتے ہیں ڈاکٹر سے، ان سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ اب تو ظالم سماج بن گئے ہیں ان کے لیے ڈاکو جی، انہیں بھی موقع دینا چاہیے نا اپنی جانوں سے ملنے کے لیے۔ اب بتا جو ان کے پیار کے دشمن بنے۔ دعا منہ بنا کر بولی تو جمرو مسکرا چھپا گیا تھا۔ یہاں وہ بے شک اس کے پیار کی گواہیاں دے رہی تھی، حقیقت میں تو اسے بس کیریوں سے مطلب تھا جو بالا نے واپس آ کر اسے دلانی تھی۔ یہ بستر پر پڑا ہے، وہ شہر چلا گیا، اب کام کون کرے گا؟ اور تو زیادہ بستر مت سنبھال، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہلکی پلکی چہل قدمی کرنی شروع کر۔ سردار نے جمرو کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ چھپ چھپ کر مسکرا رہا تھا۔ ویسے بھی آج رات میں بڑی ڈکیتی بجا رہا ہوں۔ وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے اچانک سے بتانے لگا تو جمرو نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پریشانی آئی جو سردار نے بھی نوٹ کی تھی، لیکن سردار اس ڈکیتی کے لیے تو پلاننگ چاہیے نا، اور پھر تم نے کہا تھا کہ جب تک میں تمہیں خبردار نہ کروں تب تک تم نہیں کرو گے۔ جمرو پریشانی سے بولا۔ وہ کافی زیادہ فکر مند لگ رہا تھا، جبکہ دوام صرف ان کی باتیں سن رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا ہاں، لیکن جمرو کی پریشانی سے پریشان ضرور کر رہی تھی۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے سردار۔ جمرو نے ایک بار پھر سے روکنے کی کوشش کی۔ ان بچیوں کی زندگی سے زیادہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ سردار اس کی بات کاٹتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ اس کی آواز میں عزم تھا، جبکہ دوام نے صرف جیسے ایک ہی لفظ سنا تھا، خطرہ۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ بالا کا چہرہ اب مکمل طور پر بیلا کے سامنے تھا۔ جو نقاب اس نے اپنے چہرے پر ڈال رکھا تھا وہ ہٹ چکا تھا۔ اب بیلا کی نگاہیں اس کے چہرے پر چمک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور ساتھ ہی کچھ ایسا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بالا نے اپنے پردے کو ہٹایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ بیلا بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بالا کا چہرہ ایسا تھا جیسے قدرت نے بڑی فرصت سے تراشا ہو۔ ہر زاویہ، ہر حد ایسا تھا جیسے کسی ماہر فنکار کی کینوس پر ابھرا ہو۔ اس کی آنکھوں میں گہرے سمندر کی مانند تھی، جن میں کبھی شرارت کے ستارے چمکتے تھے اور کبھی گہری سوچ کے بھنور۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو دیکھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ وہ محض خوبصورت نہیں تھی بلکہ بے پناہ ذہانت اور ایک پوشیدہ طاقت کا عکس بھی تھی۔ ان کی گہرائی میں ایک غیر روایتی شخصیت چھپی ہوئی تھی، ایک ایسا شخص جو اپنی مرضی کا مالک تھا اور جسے عام دنیا کے اصولوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک خاموش مسکراہٹ کھلتی رہتی تھی جو اس کی پرکشش شخصیت کو مزید بڑھاوا دیتی تھی۔ یہ مسکراہٹ کبھی معصومانہ شرارت کی عکاسی کرتی اور کبھی ایک پوشیدہ راز کی، جسے وہ کسی ایسی بات سے واقف ہو جو عام انسانوں کی سمجھ سے بالا ہو۔ اس کے بال جو سیاہ گٹاؤں کی مانند تھے بکھرے ہوئے بھی ایک خاص ترتیب رکھتے تھے، اس کی وحشیانہ حسن کو مزید ابھارتے تھے۔ ان بالوں کے نیچے چھپا اس کا چہرہ کسی یونانی دیوتا سے کم نہ تھا۔ اس کی ناک کی نوکدار ساخت، خوبصورت ہونٹ جو کبھی تن سے مسکراتے تو کبھی اس کے حسن کو دیکھ کر ہلکے سے کانپ اٹھتے، اور اس کے گالوں کی ہڈیاں جو اس کے مردانہ وجاہت کو مزید نمایاں کرتی تھی، یہ سب کچھ ایک مکمل ہم آہنگی میں تھا۔ اس کی جسامت کسی دیو قد پہلوان جیسی نہیں تھی بلکہ ایک چست اور لچکدار شکاری کی طرح تھی۔ اس کا قد لمبا تھا لیکن اس کی چال میں ایک خاص قسم کی ایک ایسی خود اعتمادی تھی جو اس کے ڈاکو ہونے کی وہ اپنی ہر حرکت میں نفاست اور بے پرواہی کا حسین امتزاج رکھتا تھا۔ جب وہ چلتا تھا تو لگتا تھا جیسے ہوا میں تیر رہا ہو۔ ہر قدم میں خاص ردم تھا۔ بالا کی شخصیت صرف اس کی ظاہری خوبصورتی تک محدود نہیں تھی، وہ ایک پڑھا لکھا ڈاکو تھا، ایک ایسا تضاد جو اسے منفرد بناتا تھا۔ اس کی ذہانت اس کی آنکھوں سے جھلکتی تھی، وہ حالات کو فوراً بانپ لیتا تھا اور اس کی باتوں میں ایک خاص ذہانت اور حاضر جوابی تھی۔ وہ عام ڈاکو کی طرح صرف طاقت پر یقین نہیں رکھتا تھا بلکہ عقل اور حکمت کو بھی استعمال کرتا تھا۔ اس کی گفتگو میں کبھی کبھی شاعرانہ انداز بھی نمایاں ہوتا تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس کے اندر ایک احساس دل بھی موجود ہے، لیکن شاید صرف بیلا کے لیے۔ اس کا مزاج ایک کھلتی دھوپ اور چھاؤں کا سا تھا، کبھی شدید غصے میں ہوتا تو کبھی معصوم شرارتوں میں مگن، کبھی اس کے لہجے میں سختی ہوتی تو کبھی عشق کی نرمی۔ وہ بے باک تھا، کسی سے ڈرتا نہیں تھا اور اپنی بات منوانے کا ہنر بھی جانتا تھا۔ اس کے اندر ایک جنونی عاشق بھی چھپا ہوا تھا جو اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ بیلا کے لیے ہسپتال آیا تھا، اس کے پیچھے اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا، یہ سب اس کے لیے اس کی جنونی فطرت کا حصہ تھا۔ بالا ایک ایسا ڈاکو تھا جس کا اپنا اصول تھا، ایک ایسا شخص جو اپنی مرضی پر جیتا تھا اور کسی بھی دنیائی قاعدے سے بلاتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک جنگلی خوبصورتی تھی جو اسے عام انسانوں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ صرف ایک ڈاکو نہیں بلکہ خوبصورتی، ذہانت، شرارت اور بے پناہ خود اعتمادی کا ایک ایسا پیکر تھا جو کسی بھی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ دیکھنے والا خود بخود اس کی طرف کھنچا چلا جاتا تھا۔ وہ دلوں کو جیتنا بھی جانتا تھا اور دہشت پھیلانا بھی۔ اس کی موجودگی ہی محفل کو چار چاند لگا دیتی اور اس کا وجود ایک ایسا مم تھا جسے سلجھانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر بیلا کے لیے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر چلا آیا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جب بیلا نے اسے دیکھا اس کی مسکراہٹ میں ایک فتح مندی کا احساس تھا۔ پھر بابی خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اکرم نے ایک نظر سے دیکھا، آج وہ سلام کرنے کی زحمت بھی نہیں کر رہی تھی۔ اکرم بنا کچھ بولے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ میری گاڑی میں زیادہ کوئی نہیں ہے، صرف میری ماں اور بہن ہے،
मेरी बहन तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मैं बताऊँ, इसके हाथ की बिरयानी बहुत मज़े की है, वो तुम्हारे लिए स्पेशल बना रही है। तुम कुछ बोल नहीं रही, वो इतना नॉर्मल होकर बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो काफ़ी देर से बाप की उदासी और खामोशी महसूस कर रहा था। अब आखिर अपनी बातें रोकते हुए इससे पूछने लगा, क्या बोलूँ? बता दीजिए, मुझे पता नहीं है आप मेरी कौन सी बात बता दीजिए, मुझे नहीं पता कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लग जाए और फिर आप रुखसती से इनकार करवा कर मेरे घर वालों को अजियत दें। फिर बाबा अचानक बोली तो अकरम को जैसे चुप सी लग गई। तो जानता था कि पिछले दिनों इसने इस फैमिली को बहुत ब्लैकमेल किया, बात पर रुखसती न करने की धमकी वो बेशक अपने मकसद के लिए दे रहा था, लेकिन ये सारी बातें यकीनन बाप को अजियत दे रही थी। बाप मैंने इस केस को सर पर सवाल कर लिया था और कुछ नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती की है, और जहाँ तक तुम्हारी निकाह की शर्त है तो निकाह यूँ ही नहीं होता। ये बात मैं भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में लबा की रजामंदी होती है, क्योंकि ये इसका सबसे पसंदीदा काम है। मैं इस निकाह को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, जो कि यकीनन एक बहुत ही गलत हरकत थी, लेकिन अगर हमने एक लम्हे के लिए रुका, मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। वो नरमी से देखते हुए बोला। और सब कुछ ठीक कैसे होगा? मेरी रुखसती करवा कर? रुबाबी से देखते हुए पूछने लगी। तो अकरम ने कंधे उचकाए थे। यकीनन रुखसती हमारे तलक में बेहतरी ला सकती है। चलिए, ये फैसला भी आपने कर ही लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रुखसती तलक को बेहतर बना सकती है तो ठीक है, करवा लीजिए रुखसती। इसके लिए में तंज और मायूसी दोनों थी। क्यों, क्या हुआ? क्यों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? बस की आवाज़ में छुपी विपस्ती और आंखों की वीरानी देकर उलझ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसके साथ रुखसती चाहती ही नहीं है। यकीन करें अकरम साहब, अगर मैं अपने माँ बाप के हाथों से बेबस ना होती तो आपके हाथ की कठपुतली कभी नहीं बनती। मोहब्बत के इस दर्जा तौहीन पर मैं आपके साथ रुखसती लेने के बजाय तलाक लेना अपने लिए बेहतर समझती, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप आपके आगे बेबस हैं। मेरे ख़ानदान वालों के अलावा मेरे ख़ानदान वालों की मेरे अलावा और भी बेटियां हैं, और मेरी तलाक करवा कर अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते। रुबाब ने दिल का सारा दर्द खोल कर रख दिया था। रुबाब, मैं जानता हूँ तुम इन सब चीज़ों से बहुत दिल बचता हुई हो, तुम्हारा दिल दुखा है, मैं समझ सकता हूँ। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुँचाई है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं तुम्हें इन सब मामलात में कभी भी शामिल नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। वैसे देखते हुए बोला। सफ़र में तेज़ी से गुजरा रहा, जबकि रुबाब की तरफ से मसला खामोशी से परेशान कर दिया था। इसकी बेबसी अकरम के दिल में हल्की सी चुभन पैदा कर रही थी। डॉक्टर बेला, मैं जानता हूँ मैं बेतहाशा खूबसूरती का मालिक हूँ, लेकिन मुझे खुशी होगी कि मेरी खूबसूरती को इग्नोर करते हुए तो मुझे खाना दे दो। बाला ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। बेला की निगाहें अभी तक इसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो खुद भी हैरान थी कि इतनी देर तक वो इसे क्यों देखती रही। इतना भी कोई हसीन नहीं था वो, लेकिन इसके चेहरे में कुछ तो ऐसा था जो इसे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं नाश्ता भी नहीं करके आया तुम्हारे चक्कर में, आप तुम्हारी मामलात लेने के चक्कर में मैंने दोपहर का खाना भी गोल कर दिया। जल्दी करो, भूख लग रही है मुझे। ये सारा दिन या फिर सारा दिन यूं ही खड़े मेरी शक्ल देखती रहोगी? बाला के लहजे में अब हल्की सी सख्ती थी, जैसे वो बेला की हालत का मजाक उड़ा रहा हो। क्या इसे अपनी पर्सनैलिटी पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन हो? मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा ये शक्ल सारी ज़िंदगी निहारने का, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई अचानक से टपक पड़े तो जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। वो हुक्म देते हुए बोला तो बाला जैसे होश की दुनिया में वापस आ रही थी। इसकी निगाहें इसके चेहरे से हट गई। वो फ़ौरन किचन की तरफ चली गई। हालांकि इसका इसे खाना देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जाने इसकी शख्सियत में ऐसा क्या था कि वो इसके सहम में जगड़ती जा रही थी। इसकी हर बात में एक ऐसी कशिश थी जो इसे मजबूर कर रही थी। इसने जल्दी से बिरयानी प्लेट में डाली और वापस लाते हुए पानी का गिलास भी भर कर ले आई। जल्दी ठूसो और निकलिए यहाँ से, आज के बाद मेरे घर पर मत आइएगा। इस तरह की मेहमान नवाज़ी मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। वो गुस्से से कहती कमरे की तरफ झांक रही थी, जहाँ इसकी अम्मी अभी तक गहरी नींद में सो रही थी। इसे खौफ था कि कहीं वो ना जाग जाए। ऐसी मेहमान नवाज़ी तो अब चलती ही रहेगी। बाला ने इत्मीनान से जवाब दिया, बिरयानी अच्छी बनाई है। इसे चमचा भरकर खाते हुए मज़े से कहा, जब अचानक अंदर से आवाज़ आई, बाली किससे बातें कर रही हो? अंदर से इसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। बेला का निक नेम सुनकर बाला की लबों पर बेख्तियार एक खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। वो बाला और वो इसकी बाली। वाह, वो अम्मी कुछ नहीं, वो पड़ोस का बच्चा आया है, शायद भाई ने भेजा है सलाद वगैरह का सामान। बेला का बराका इसके करीब से अंदर की तरफ जाते हुए झूठ बोल रही थी। थोड़ी देर पहले मोहल्ले का एक बच्चा इसे सलाद का कोई सामान दे गया था। इसके जहन में फिलहाल वही बात आई थी, जबकि इसके झूठ बोलने पर बाला कंधे उचकाकर ऐसे खाने में मसरूफ़ है जैसे ज़िंदगी में कभी खाना ही न मिला हो। वो माँ के दरवाजे के करीब खड़ी कभी बाला को देख रही थी तो कभी अपनी माँ की तरफ। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे, जबकि बाला मज़े से खाना खाकर प्लेट एक तरफ रखता पानी का गिलास पीकर अपना कुत्ता ठीक करते हुए उठ खड़ा हुआ। मज़ा आ गया, इस तरह के खाने का तो अपना ही मज़ा है। वह बाहर की तरफ जाने लगा तो बेला तो इसके पीछे पीछे आई दरवाज़ा बंद करने के लिए। ये आदमी थोड़ी ही देर में इसे बगल करके रख गया था। अगर किसी को पता चल जाता कि इस तरह दिन दहाड़े एक डाकू न सिर्फ इसकी पट्टी बनवा कर गया है बल्कि इसका खाना भी खा गया है तो वो तो बहुत ही रुसवाई होती। बेशक वह एक पढ़ी लिखी खुद मुख्तियार लड़की थी, लेकिन खुद डॉक्टर बन रही थी, लेकिन ऐसे मामलों में लड़की की इज्जत क्या थी वो बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। और फिर वो इतना कोई असर वाले रोसा आइंदा ये दरवाज़ा इस तरह से खुला हुआ नहीं होना चाहिए और खाना अच्छा बनाती हो, आता रहूँगा खाने के लिए। वह कहकर बाहर निकल गया, जबकि बेला ने गुस्से से दरवाज़ा बंद करते हुए सुकून की सांस ली। आने तो मैं तुम्हें दूंगी ना। भैया से पेंटी ना करवा दी तो मेरा नाम भी डॉक्टर बेला अकरम मलक नहीं। गाड़ी एक घर के बाहर रुकी, छोटा सा घर लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। अकरम ने हॉर्न बजाया तो एक लड़की तेज़ी से निकलते हुए बड़ा गेट खोल चुकी थी। अकरम ने गाड़ी अंदर दाखिल की, जबकि रुबाब का सारा ध्यान इस लड़की की तरफ था। वो बहुत परजोश लग रही थी। अम्मी देखिए, आपकी बहू रानी आ गई। हटिए रियान भैया,
آپ سے بعد میں ملوں گی، پہلے بابی سے۔ ریان کو جو مسکراتے ہوئے اپنی بہن کی ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا، تیزی سے رباب کی طرف آتی اس کے ساتھ لگی، جبکہ رباب بھی اس لڑکی کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جو کافی دنوں بعد نظر آئی تھی۔ آپ میری بھابھی ہیں، اللہ اللہ کتنی خوبصورت ہیں آپ بہت پیاری ہیں ماشاء اللہ، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ اس کی آواز میں سچی خوشی اور تعریف تھی۔ ارے سائڈ ہٹے ریحان بھائی، آپ تو وہی پرانی شکل لے کر آئے ہیں، مجھے VIP بندے کو اندر لے جانے دیجیے۔ وہ اکرم کو پیچھے کرتے ہوئے رباب کو لے کر اندر داخل ہو گئی۔ رباب اس کا نام سن کر ذرا حیران ہوئی تھی، وہ اسے ریان کیوں کہہ رہی تھی؟ اس کا نام تو اکرم تھا، لیکن یہ نام اس نے سن رکھا تھا، شاید نکاح کے وقت۔ وہ اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوتی سامنے والے کمرے میں آئی تھی جہاں ایک عورت بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ایک شفیق سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ممتا کی چمک۔ امی یہ دیکھیے آپ کی بہو رانی آ گئی، وہ اس عورت کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی جس کے چہرے پر ایک شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رباب کے سر پر رکھے جیسے اسے دعائیں دے رہی ہوں۔ رباب ان کی اپاہج حالت دیکھ کر خود ہی آگے بڑھتے ہوئے ان سے ملنے لگی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اکرم کی ماں اس کے در بیمار ہوں گی۔ رباب بھیا یہ ہماری امی ہے، رباب بھابھی یہ ہماری امی ہے، ہمارے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا 3 سال پہلے۔ امی کو فالج کا اٹیک ہوا، اس کے بعد وہ چلنے پھرنے سے معذور ہے، لیکن ان کا سایہ ہی ہمارے سب کچھ ہے۔ بالا نے رباب کو اپنی والدہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اس کی آواز میں احترام اور محبت ہے۔ میں کھانا لگاتی ہوں، میں نے بہت ہی مزے کی بریانی بنائی ہے، آپ بھی میری فین ہو جائیں گے اپنے شوہر کی طرح۔ سوری میں نے تو آپ کو اپنا نام بتانا ہی بھول گئی، میرا نام بیلا ہے، ڈاکٹر بیلا، فیوچر کی بہت بڑی ڈاکٹر، آپ کی ننند۔ وہ بہت ہی ایکسائٹڈ تھی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور چہرے پر مسکراہٹ جو اس کی پرجوش انداز کو نمایاں کر رہی تھی۔ باقی پہلے میں آپ کو اپنے ہاتھوں کا جادو دکھا دوں، پھر میں آپ کو اپنا پورا گھر دکھاؤں گی۔ اتنی جلدی کھانا، پہلے تم مجھے گھر دکھا دو، پھر تمہارے ہاتھوں کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ رباب مسکرا کر بولی۔ اسے بیلا کا یہ آئیڈیا برا نہیں لگا تھا، رباب کے چہرے پر پہلی بار اتنی خوشی اور سکون نظر آیا تھا۔ اس دوران اکرم بھی انہیں ایک دوسرے میں مگن دے کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا، جس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور اس سے پوچھا جی تو کیسی لگی آپ کو بہو، پسند آئی آپ کو؟ امی مسکرا دی، ان کے چہرے پر اطمینان کا تاثر تھا اور آنکھوں میں پیار۔ بہت پیاری ہے ماشاء اللہ، آپ کا جو اس کا دل دکھایا، بہت پٹے گا تو میرے ہاتھوں، اتنی معصوم لڑکی کو اداس کر دیا ہے۔ وہ ناراضگی سے بولی، ان کی آواز میں سختی تھی۔ اکرم آہستہ سے اس کے ساتھی سراہنے پر سرک گیا، یقیناً وہ انہیں رباب اور اس کی فیملی کے متعلق ساری تفصیل بتا چکا تھا۔ آپ ناراض تو نہ ہوں نا، نہیں دکھاؤں گا آپ کی بہو کا دل، بہت خوش رکھوں گا اسے، بس بات کر لی ہے اس کی فیملی والوں سے، وہ رخصتی جلد سے جلد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی تو وہ بھی خوش ہوگی، اس کے چہرے پر ایک بڑی ہی خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو گائز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ملیں گے کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت، خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خدا حافظ۔